Hello, everyone. A very good afternoon to everyone. Thank you for joining today for the panel discussion. First of all, I would like to tell you about the EBSB Club. EBSB Club SRCSW is an initiative by MHRD in which every state of India is paired with another state. So, in our case, Delhi is paired with Sikkim. So, we in the EBSB club are promoting the richness and culture of Sikkim. Now, for the guidelines of today. Ariba, next slide. The guidelines of today are as follows. Kindly switch off your mic and camera for a better experience. Malicious and activities are not expected from the audience. The audience can present their doubts for questions by posting them in the chat box. The questions will be taken live in throughout the session. The participants have to fill the feedback form that we will be posting in the chat box at the end of the session. Now, coming to the today's session, we have planned a panel discussion on the topic the journey of Indian media since independence. Yes, for that we have three speakers. First, Mr. Shivang Mathur. He is an associate editor in India Ahead. He is also columnist in various newspapers, namely Hindustan Times, Femine Women Planet, and Pop Exo. He was the recipient of Excellence in Journalism Award at the 8th Global Journalists Festival. Next is Ms. Shweta Kothari. She is a senior journalist and a news presenter and reporter. She is also the three times TEDx speaker, alumna in University of Sussex, United Kingdom, and previously she has worked with NDTV and CNBC TV 18. Next is Mr. Utkarsh Pandey. Next slide. Really sorry, Mr. Utkarsh Upadhyay. He is a consulting columnist in the Frustrated Indian. He was the recipient of Media Excellence Award 2016 as a budding journalist. He was the recipient of Voice of Youth 2020. So for today, we are beginning with the Q&A round for the panel discussion. You can mark your questions in the chat box, and also you can also switch on your mics. Hello to everyone. Hello, sir. Hello, ma'am. So, since the panel discussion is about independence, like how the media has changed, so the very first question which comes to my mind is which phase of independent India's press was most important and why? Any of the panelists can answer the question. Shweta, you would like to go ahead with this? Yes, Shivang. Thank you very much. Thank you very much, everyone, for having me here. It's an important question because media in the last 70 plus years of independence has gone through a very turbulent times in India. Now, there have been ups, there have been downs, but I think the most significant part of the history of Indian media was in 1975 when emergency was imposed in the country. Now, that was a test of media. If you go back and if you read the history textbooks, you'll realize that during that time, there were approximately 3,000 plus newspapers that were confiscated. More than 300 journalists were jailed. There was a rebellion against the state for the very first time in the history of independent India. And it also
so as to say marked a bifurcation between what we call as pro-government press and anti-government press. At that point in time, more than 50 editors in Delhi, in the national capital, what many people also refer to as the Lutyens' Delhi, expressed their faith in the Prime Minister, which means that they agreed to censorship, self-censorship. Now, as I said, that I think was a defining moment, because that for the very first time in the history of independent India, we saw press taking a stance which was a pro-government stance. At that point in time, L.K. Advani ji very famously said that at a time when press was asked to bend, they crawled. So that we have seen mirroring today, and we'll see happening in the years to come. But I think that was a very important time in defining how press will function in this country in years to come. Thank you, ma'am. It was indeed insightful, and I really got to learn a lot of things. Now, proceeding towards sir, any insights in the same? You asking me? Yeah. ओके। जैसा कि श्वेता ने कहा और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे बताया गया था डिस्कशन से पहले कि डिस्कशन हिंदी में करना है ताकि ज़्यादा लोगों को हम संबोधित कर सकें, तो मैं अपनी बात हिंदी में शुरू करूँगा। जैसा कि श्वेता ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए 1975 का वर्ष जो है वो वैसे तो जैसे कि कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कहा है कि भारतीय पत्रकारिता का कोई भी समय जो है वो ऐसा नहीं रहा जिसको हम स्वर्णिम दौर के तौर पे या गोल्डन एरा के पीरियड के तौर पे देखें। और वो गोल्डन एरा तो हम आज भी मिसिंग करते हैं। अगर हम अपने भारतीय संविधान की बात करें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तो बात की गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात तो की गई है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात नहीं की गई है। तो आज की तारीख में जो आप फ्रीडम ऑफ प्रेस देखते हैं वो एक तरीके से बाई प्रोडक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। भारतीय संविधान में कहीं भी फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात नहीं की गई है। तो ऐसे में क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो है कि आज़ादी के बाद भारतीय पत्रकारिता का जो इतिहास रहा है 70-75 वर्ष का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए भी है कि आज़ादी के पहले जो पत्रकारिता हुई भारत के अंदर, तो उस पत्रकारिता को जो उस वक्त के लोग थे, उस समय के जो लोग थे, चाहे वो नेहरू जी हों, पटेल हों या शास्त्री जी हों, तमाम लोगों ने ये माना कि ये इंडियन नेशनलिस्ट प्रेस है, यानी राष्ट्रवादी पत्रकारिता करने वाली प्रेस है। ये वो लोग हैं जो देश हित में पत्रकारिता करते हैं। और उसी एवज में जो है जितने भी पत्रिकाएं, मैगजीन्स उस वक्त निकलती थी, वो तमाम जो भारतीय पत्रिकाएं थीं वो इसी चीज के लिए काम कर रही थी कि किसी भी तरीके से भारत को आज़ादी मिल सके, चाहे दांडी मूवमेंट हो या सत्याग्रह हो या तमाम उस वक्त जो गांधी जी और नेहरू जी ने जो मूवमेंट्स चलाए फ्रीडम के लिए, उसको पूरा समर्थन मिला भारतीय पत्रकारों ने और भारतीय पत्रिकाओं से उस वक्त के दौर में। बहरहाल हमारा विषय है कि हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखिए पत्रकारिता, जैसा श्वेता ने अपनी शुरुआती बातचीत में मेंशन किया कि 1975 का वर्ष एक ऐसा वर्ष रहा है जो वाकई में एक बहुत चौंकाने वाली स्थिति थी, जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को एक झटका लगता है कोर्ट से, और उसके बाद जिस तरीके से उनका रिएक्शन सामने आता है, पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है। और उसके बाद सबसे विचित्र स्थिति ये भी थी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस देश में कार्य करना शुरू कर चुकी थी 1966 के अंदर, 1966 में, और तमाम तरह की पत्रिकाएं बड़ी बड़ी खबरें उस वक्त कवर कर रही थी। बावजूद इसके, जैसा श्वेता ने भी मेंशन किया, कि लगभग 47 संपादकों ने घुटने टेक दिए इंदिरा गांधी के आगे, और ना केवल घुटने टेके बल्कि उनकी बातों में सहमति जताई, और उसकी वजह से जो है बाद में उनको बड़े बड़े घर, बड़े बड़े फार्म हाउसेस और बड़े बड़े राज्यसभा के और पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे पदों से नवाजा गया। तो एक तरीके से ये निश्चित तौर पे भारतीय इतिहास के अंदर मैं मानता हूँ 75 वर्ष की आज़ादी के अंदर कि ये एक काला अध्याय हमारे सामने है। लेकिन इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो मुझे लगता है श्वेता और मेरे दूसरे साथी उत्कर्ष भी सहमत होंगे कि 90 के दौर के बाद अर्ली 90s में जो टेलीविजन आया हिंदुस्तान के अंदर, उसने भारतीय पत्रकारिता को और भारतीय दर्शक और व्यूअर को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। और ये वो दौर था जहां से वो रैट रेस भी शुरू हो गई पत्रकारिता के अंदर, जिसकी वजह से कंटेंट जो है उसकी क्वालिटी लगातार, उसका जो स्तर था
वो डाउन होता चला गया। और जिस तरीके से पहले खबरों को लेके ज्यादा जो एक हमारा मोटिव था खबर करने का या अखबार में खबर लिखने का, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता चला गया। और जो टीआरपी की रेस थी उसके हिसाब से प्रोग्राम्स डिसाइड होने लगे, पूरे दिन का एक रनडाउन बनने लगा कि किस तरीके से कितने बजे क्या चलाना है। और वो हम करीब करीब लगभग लगभग मुझे लगता है 20 से 25 साल का वर्ष अब समय पूरा हो रहा है जब हम थोड़ा सा पत्रकारिता में निचले स्तर की तरफ गिरे हैं। कुछ लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, लेकिन निश्चित तौर पे पत्रकारिता, जैसे श्वेता ने कहा कि एक तो 1975, और दूसरा मुझे लगता है कि अर्ली 90s 95 के बाद खास तौर पे जो पत्रकारिता के ये दो ऐसे काल मुझे लगते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं इंडियन जर्नलिज्म को लेकर। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल सहमत हैं आपकी बात से, एंड जो भी आपने बोला बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उत्कर्ष सर अगर बोलना चाहें कुछ इस पर। Thank you, Prachi. I Yes. would. Hello, am I audible? Yeah, you are audible. So I will begin up with actually thanking the ESB SB Club, and I am very pleased and honored to join you all here to celebrate the special occasion that is Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of independence under MHRD Ministry. First of all, I would like to congratulate the ESBS Club, and this is a sorry. Hello. हेलो। वेल आई वुड लाइक टू से समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल उत्कर्ष सर के लिए आज एक स्पेशल चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। सर की तबीयत ठीक नहीं थी कल रात को। ही वॉज सफरिंग, लाइक ही टेक्सटेड मी इन द मॉर्निंग, इन द अर्ली मॉर्निंग, एंड यू नो ही सफरिंग फ्रॉम इंटेंस फीवर, 102 डिग्री है, एंड हिज आईज वर एक्चुअली swelling, but you know he wanted to be a part of this, sir. Shivang sir and Shweta ma'am, he wanted to interact with you all with us, and so he's still there with us. So first of all, thank you so much, sir. This is a very great initiative that although you're not well, but still you are here, and it उत्कर्ष, means a हाउ आर lot यू? for us. हाउ It आर यू means a टुडे? lot for सर us. आई एम आज फीलिंग कैसे हो बेटर आप? नाउ। और सबसे बड़ी बात है कि शिवांग सर और श्वेता मैम को हम लोगों ने पढ़ा है। एक्चुअली मैं अभी ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में हूँ, लेकिन शिवांग सर और श्वेता मैम को कहीं ना कहीं मीडिया एक्सपोजर के दौरान बहुत देखा है मैंने, एंड आई हैव रेड देम ऑल। ज़्यादा नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने कहा नहीं, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। और थैंक यू उत्कर्ष। आप सबको सुनकर Thank you, Utkarsh. और आप सबके साथ एज अ पैनलिस्ट जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं सबसे पहले इस पूरे प्रोग्राम के लिए जो मैंने 3 लाइन्स लिखी थी कल, मैं शुरुआत उससे करना चाहूँगा कि आज़ादी का आ लिखा गया अखबार से, सूचना का संचार हुआ डीडी के विस्तार से, वहीं आज कोई अनभिज्ञ नहीं है डिजिटल के आधार से। तो बहुत सुंदर। ये मेन चीज़ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज का जो टॉपिक है मीडिया आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये उसके लिए मैं अपनी समझ से कहूँगा कि ये सटीक रहेगा। और विरोधाभास हर समय रहा है मीडिया को लेकर, हम इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है हर समय काल परिस्थिति के अनुसार मीडिया का परिवेश बदला है और सब चीज़ें समय के अनुकूल परिवर्तित होती रहेंगी। लेकिन आज का जो हमारा एक टॉपिक है, शीर्षक है, उसको लेकर मैं शुरुआत इस टॉपिक की अपने कुछ पॉइंट्स के साथ करना चाहूँगा कि जो इंडियन मीडिया का स्वरूप 1947 और उससे पहले बदला है। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, मेडिवियल हिस्ट्री की बात करें या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, हमेशा एक ट्रेंड फॉलो हुआ है। देयर इज अ इक्वल ट्रेंड फॉलोड बाय ईच एंड एवरीवन। For example, today every country wants to excel in nuclear weapons, space exploration, science and tech, and this is undoubtedly today's trend. But before 1947, there was a trend of capitalism, imperialism, industrialization, and so on. तो हम इन सभी को एक मतलब एक तराजू में रख के नहीं तोल सकते।
इसमें हम लोग अगर मीडिया की बात करें तो उस दौरान 1947 और 1947 के बाद की जो पत्रकारिता रही वो हमारे ही राजनेताओं ने शुरुआत करी। हम उसको कभी भूल नहीं सकते। और वास्तव में जितने भी पब्लिकेशन शुरू हुए, न्यूज़पेपर शुरू हुए, वो ज़्यादातर इंडियन पॉलिटिशियंस के द्वारा शुरू किए गए। वो क्योंकि हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस में हमारे साथ थे और उन्हीं के चाहे हम गांधी जी की लाठी की बात करें या किसी की बात करें, उन्हीं की बदौलत इंडियन इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई थी और उसकी उस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि इंडियन पॉलिटिशियंस का उस समय के वास्तव में तो वो उस समय इंडियन पॉलिटिशियंस नहीं कहे जाते थे। दे वर द मेन बैरियर्स ऑफ द फॉरमोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बट मैं इस बात को अब आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि इन सबको अपने पाले में करने के लिए जितने भी आज के ट्रेंड्स हैं उनको सेट करने के लिए उस दौरान अंग्रेजों ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के द्वारा कुछ टर्गल कानून बनाए गए थे जो मीडिया के हितों को कहीं ना कहीं धूमिल करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी छवि तो सुधारनी ही थी। क्योंकि अगर आप किसी देश पे शासन कर रहे हैं और अतिक्रमण करके शासन कर रहे हैं, जैसे आज कई देशों में हम देख रहे हैं, तो उसकी वास्तविकता को छुपाने के लिए, उस देश की जनता को भटकाने के लिए मीडिया की जो प्रभुता है उसको घटाने के लिए सबसे पहले काम किए गए। तो उसका सबसे बड़ा पहला पड़ाव जो पार किया गया वो ऐसे कानून बनाए गए जो जिन्होंने सब चीजें कर्व करी। दे कर्व द फ्रेंच द फ्रीडम ऑफ प्रेस सिस्टम एंड जस्ट टू इंश्योर देयर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि दो कानून ऐसे बनाए गए थे उस दौरान ब्रिटिशर्स के समय पे, जिनमें एक था शुरुआती दौर में, मैं ज्यादा पीछे चला गया हूं लेकिन यह है कि शुरुआत यहीं से हुई थी। एक एक्ट था सेंसरशिप प्रेस एक्ट which was initiated in 1799 and therefore licensing regulations act was licensing regulations था या it was licensing I may be wrong or लाइसेंसिंग रेगुलेशंस था। तो उस दौरान ब्रिटिशर्स ने इन दो कानूनों के तौर पर जब ये कानून इस्टेब्लिश कर दिए तो उसमें एक चीज समझ आई कि जितने भी इंडियन पब्लिकेशंस तब बने भी नहीं थे, उन्होंने अपने जो पब्लिकेशंस थे, हम कहेंगे ब्रिटिश के जो पब्लिकेशंस थे, उनको भी कर्व करने की कोशिश की, क्योंकि कई ऐसे पब्लिकेशंस थे जो उन्हीं की सारी चीजें लिखने लगे थे। तो ब्रिटिशर्स ने दो एक्ट लिया है। वो उसके बाद जब उनको लगा कि ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, तो 1835 में दे ensured that we should have some freedom of publications, which resulted in right of numerous publications which were established in India, somehow that harmed the dominance of British. Again, in 1857, they revoked and restored all provisions and so-called laws which were initiated to give relaxations to the media. Afterwards, जब ये सब चीजें होने लगी तो प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुई। तो इंडियन मीडिया को कर्व करने का जो सिलसिला था वो उस दौरान ब्रिटिशर्स ने इन कानूनों के साथ किया। उसके बाद जब इंडियन मीडिया या हम कहेंगे इंडियन पब्लिकेशन शुरू हुए, तो उसमें सारे मूवमेंट्स के जितने भी हमारे अग्रणी लीडर्स थे, जो मेन लीडर्स थे, चाहे एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी हो, बाल गंगाधर तिलक हो, और केसरी के नाम से जिन्होंने पत्रकारिता अपनी कलम की शुरुआत की थी, ऐसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उन्होंने जब लिखना शुरू करा तब इनको लगा कि अब हमारा थोड़ा मामला लचीला पड़ने लगा है, भले ही हमने इतने कानून बना दिए। और उस दौरान भी चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे उन सब ने जो लिखा वो इन सब कानूनों के विरुद्ध लिखा। ये कानून तब भी स्थापित थे, चाहे हम सेंसरशिप की बात करें या किसी चीज की बात करें। उसके बाद कई ऐसे कानूनों के परिणाम स्वरूप कई नेशनलिस्ट को जाना पड़ा जेल, और उनके जो पब्लिकेशंस थे उनको बंद कर दिया गया। तो ये सब चीजें उस समय करी गई। और तब ऐसे हर लोग भी था, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर
इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं रही है कभी भी। ये बस दिखाया गया है कि भारत को क्या कहते हैं, बिल्कुल वो कहीं से भी ना एजुकेटेड है ना कहीं से अपनी बात रखने के लिए सक्षम है, लेकिन हमारा एक धड़ा ऐसा मजबूत था जिसको हम इंटेलेक्चुअल ग्रुप कहेंगे। उसने सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, फॉर्मेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, इन सब में अपनी भागीदारी निभाई। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं सब के साथ ब्रिटिशर्स को आईना दिखाने का काम किया। और मेन उसके बाद सारी चीजें स्टार्ट हुई, और इन सब ने क्या कहते हैं जिस तरह से सारे फ्रीडम मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश की, उस पे थोड़ा लगाम लगने लगी। और मेन हम लोग जो मेन मोटिव है इस टॉपिक का, जो हम कहना चाह रहे हैं कि 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जो शुरुआती दौर था, तो जो कर्व करने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने, वो इसी की तरह की थी। और जो इनके कानून थे वो उस दौरान के लिए उनकी ओर से लगाए गए ऐसी बंदिशें थी, जिन्होंने क्या कहते हैं जितने भी इंडियन पब्लिकेशंस थे उनको बंद करने का काम किया, उनकी आवाज को रोकने का काम किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि हमारे पूरे देश में कई ऐसे लोग थे जो क्या कहते हैं ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, और उनके पास बहुत सारी कमी थी, चाहे वो मीडियम्स की कमी हो, चाहे वो पढ़ाई मतलब जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड कमियां थी, वो सब दुरुस्त करने का काम इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स ने किया। और हम लोगों ने जिस तरह से उसके बाद का इंडियन मीडिया देखा है, तो वो आगे के लिए बात करेंगे। अभी मेरा मेन मोटिव था कि हम उस दौरान की पत्रकारिता और उस दौरान जो सारी चीजें लगाई गई, पाबंदियां लगाई गई, उसको मैं इन सब में पिरोना चाहता था। बस अभी के लिए इतना ही। आगे हम शिवांग सर और श्वेता मैम से जो वो कहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Thank you, sir and ma'am. Now we can have the next question. Good afternoon, sir, and good afternoon, ma'am. May I know what are some positive impacts of Indian media in the country's development? आपका सवाल श्वेता से है कि मुझसे है? सर, जिससे आंसर करना है। शिवांग, आप ले सकते हैं सवाल। शुक्रिया श्वेता। देखिए, आपने सवाल किया है कि भारतीय जो मीडिया है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमारी सोसाइटी पे और हमारे देश के विकास पे क्या रहे हैं। यस सर। ये सवाल असल में इसमें कई सारे पहलू हैं। क्योंकि आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करी है, तो पहले मैं आपको वहीं पे ले जाना चाहूँगा। देखिए, भारतीय मीडिया की ज़रूरत, असल में पत्रकारिता की ज़रूरत क्या है, इसके मूल में एक बहुत बड़ी बात छुपी है। वो ये कि पत्रकारिता का एक अंग ये भी है कि जो हमारी सरकारें पॉलिसी मेकिंग करती हैं एक आम जनता के लिए, एक आम मानस के लिए, तो उसकी जो एक लैंग्वेज होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है। वो एक अपनी तरह का jargon होता है। तो उसकी सिंप्लीफिकेशन ऑफ दैट टर्मिनोलॉजी, वो आज एक आम मानस तक, एक किसान, एक गरीब, एक शोषित, एक वंचित इंसान तक पहुंच सके, समाज के सबसे आखिरी कोने में जो इंसान खड़ा है उस तक पहुंच सके। तो पत्रकारिता की ज़रूरत असल में उस वजह से भी पड़ी। पत्रकारिता, जैसे उत्कर्ष ने भी कहा, जो हमको काफ़ी इतिहास में ले गए, कि असल में देश में आज़ादी का मूवमेंट रहा हो, या इंडिया के अलावा भी अगर हम किसी दूसरे देश की बात करें, तो पत्रकारिता की असल जो मूल ज़रूरत है वो ये है कि जो हमारी गवर्नेंस है, जो सिस्टम है, उसके बीच में और एक आम जनता के बीच में जो गैप है, उस वॉइड को, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, और उन दोनों में संपर्क हमेशा सदा रहे, उनमें बना रहे, उसके लिए पत्रकारिता एक तरीके से मुझे लगता है एक जगह है। क्योंकि अगर हम जो 4 बॉडीज की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव है या पार्लियामेंट्री है या जुडिशरी है, वो तो कहीं ना कहीं एक बनाई हुई चीज है भारतीय संविधान में। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियन जर्नलिज्म जो है ना, ये बड़ा ही स्वयंभू वाला काम है। पत्रकारिता कोई ऐसी नौकरी या ऐसा कोई पेशा नहीं है। ये तो एक तरीके से आप खुद समाज में खड़े होते हैं, आप कहते हैं कि मैं पत्रकारिता करूंगा। अब वो तो एक अलग बात है कि इसका कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, इसमें तनख्वाहें आने लगी, वरना एक समय वो भी था। अगर आप अपने दादा दादी से या पेरेंट्स से पूछेंगे, तो पत्रकारों की वो छवि हुआ करती थी कि वो झोला छाप कहलाते थे,
वो अपना कानपुरी चप्पल पहन के और कुर्ता पजामा पहन के घुमा करते थे। उनको उनकी शादियां नहीं हुआ करती थी, कोई उनको लड़कियां नहीं देता था, उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट किस्म का काम रहा है, सामाजिक किस्म का सोशल वेलफेयर का काम रहा है। और सोशल वेलफेयर में इसलिए कह रहा हूं, जो उनका सवाल भी है कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। देखिए, मैं आपको बहुत पुरानी बात नहीं करूंगा क्योंकि हम सब आज की पीढ़ी के लोग हैं। अगर आप पिछले 20 सालों में देखें तो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जहां पत्रकारों ने और पत्रकारिता ने और टीवी चैनल्स ने, अखबारों ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। आप सबको याद होगा, मैं लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, जेसिका लाल केस। जेसिका लाल मर्डर केस जो हुआ, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हेडलाइन छपती है, नो वन किल्ड जेसिका। Yes. बाद में इसी हेडलाइन पे एक पिक्चर भी बनी जिसमें रानी मुखर्जी थी। Yes, sir. ये हेडलाइन में आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसने हमारे देश को हिला के रख दिया। न केवल हमारे देश को बल्कि अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में भी ये खबर सामने आई। जेसिका लाल एक बार में, एक पब में काम करने वाली व्यक्ति थी, जिनको बार में सबके सामने, हजारों लोगों के सामने मार दिया गया। उसके बाद उनकी जो बहन थी, जिनकी हाल ही में, जिनका अभी डेथ हुआ है, तो उन्होंने उनके लिए एक काफी लंबी लड़ाई लड़ी। और अंत में, क्योंकि पावरफुल लोग थे, सिस्टम बहुत पावरफुल था, वो तमाम लड़ाइयां हार गई। अगर मीडिया उस वक्त ना होता तो आज जेसिका के जो गुनहगार हैं वो तिहाड़ में ना होते, वो जेल की सलाखों के पीछे ना होते। तो जो उनका सवाल है कि मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या है, वो ये है। आरुषि का मामला आप देख लीजिए, या फिर इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अन्ना हजारे का मूवमेंट आप देख लीजिए, क्योंकि हम सब अभी यंग लोग हैं तो आई थिंक सबकी मेमोरी में बड़ा फ्रेश होगा। 2011-12 में जो अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ, हम सब ने क्लोजली कवर किया, मुझे लगता है श्वेता भी उस वक्त रही होंगी। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जैसे एक आम व्यक्ति वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, एक इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट होता है देश में। वो वक्त था जब CWG, 2G, कोल स्कैम, कांग्रेस के यूपीए के 10 साल पूरे होने वाले थे, पूरे देश में करप्शन का माहौल था। धीरे धीरे मोदी जी सेंटर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, देश में बीजेपी का माहौल बनना तय हो रहा था। और वहीं एक तीसरा इंसान, एक आम आदमी, हर शनिवार शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के तमाम बड़े लोगों पे आरोप लगाता है, बड़ी बड़ी आरटीआई सामने रखता है, एक अलग मूवमेंट खड़ा होता है। अन्ना हजारे महाराष्ट्र से चल के दिल्ली आते हैं, एक बड़ा मूवमेंट, जो कि मुझे याद है कि मेरी जो माता जी हैं, उन्होंने खुद ने मुझसे कहा कि हमने गांधी जी को तो नहीं देखा था, हमने अन्ना हजारे को देखा है। तो एक इस तरह का मूवमेंट पूरे देश में 24 घंटों हमने देखा। और अगर मीडिया ना होता तो ये मूवमेंट भी फुस हो जाता, ये इसका कोई मतलब ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीडिया के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो एक आम जनता को न्याय दिलाने के लिए सार्थक साबित होते हैं। और अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ भी दें, हालांकि अब ये मेन स्ट्रीम वर्ड जो है ना, ये बेकार हो गया है, इसको किसी कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए। पहले होता था कि टीवी चैनल वाले, अखबार वाले डिजिटल को कहते थे कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। मुझे लगता है डिजिटल आज की तारीख में सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम है। 60 करोड़ से ज्यादा लोग डिजिटल पे हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा ही होंगे। आप देखिए कि अभी हाल ही में एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हरियाणा का मामला देखिए आप, जो किसान आंदोलन चल रहा है। इसके अंदर एक पुलिस वाला अफसर, एक आईपीएस अफसर अपने जूनियर अफसर को कहता है कि किसानों के सर फोड़ दो। Yes, sir. उसके बाद एक वहां पे लोग कार्रवाई करते हैं, पुलिस की कार्रवाई होती है, उसको हटाया जाता है। झारखंड या उत्तराखंड का कहीं मामला था, मैं भूल रहा हूँ, वहां पे एक व्यक्ति जो है लातों से मार रहा होता है किसी व्यक्ति को, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, उसको वहां से हटाया जाता है 24 घंटे के भीतर भीतर। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है कि अगर मीडिया ना हो। और इसके अलावा भी हजारों ऐसी चीजें हैं, मैं गिना सकता हूं, जिसने समाज कल्याण के लिए काम किया है। मैं कहीं पे मना नहीं कर रहा हूं कि मीडिया में अपने निजी हित भी बहुत हैं, संपादकों के, चैनलों के मालिकों के, अखबारों के मालिकों के, चाहे वो राज्यसभा जाना हो, चाहे वो पद्मश्री पाना हो, पद्म भूषण पाना हो, या फिर वो जो बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संपादकों को मालदीव्स के ट्रिप्स पे भेजती हैं और मॉरिशस भेजती हैं, वो अलग बात है। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है, श्वेता मुझसे एग्री करेंगी, कि हमारी आस्था आज भी इस फोर्थ पिलर पे है। इसी की वजह से आज भी इस देश में हजारों मीडिया इंस्टीट्यूट्स खुले हैं और बच्चे पत्रकारिता की तरफ बढ़ रहे हैं।
देखिए कई बार जब यंग बच्चे जो कॉलेज से निकल के पूछते हैं कि हमें पत्रकारिता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या हम पत्रकार बने या ना बने, तो अक्सर मैं एक बात उनसे पूछती हूँ कि क्या आप पैशनेट हैं, क्या आप पत्रकारिता इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये ग्लैमरस जॉब है, आपको टाइम मिलेगा, टीवी स्पेस मिलेगा, स्क्रीन टाइम मिलेगा, या आप इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज यू एक्चुअली वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, यू आर अ पैशनेट जर्नलिस्ट। उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि पत्रकारिता ग्लैमरस जॉब है, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, आपकी पहुंच बढ़ेगी, आपको पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिलेगा, उनको मैं अक्सर कहती हूँ कि that is a very limited and a very minuscule part of your job. The larger part of your role is going to be tough, it's going to be hard, and it is this tough and hard job that has resulted in a lot of changes in the society. हमने पिछले 20 साल की बात की, शिवांग ने पिछले 20 साल पे बात की, और 20 साल में आपने जो मेजर एग्जांपल्स देखे, चाहे वो जेसिका लाल हो, चाहे वो आजकल की जो हर तीसरे दिन एक ना एक वीडियो आई कोविड के दौरान, किसी बड़े पुलिस अफसर ने किसी का फ़ोन तोड़ दिया, किसी को लात मारी गई, किसी को धक्का दिया गया, ऐसे कई सारी वीडियोस जो सामने निकल कर आए जिसने अब्यूज़ ऑफ पावर को एक बड़े पैमाने में लाके दिखाया लोगों तक, जनता तक, डिजिटल के माध्यम से। हमने देखा कि हर उस इंसिडेंट में कोई ना कोई कार्यवाही ज़रूर हुई क्योंकि पब्लिक प्रेशर बढ़ा। तो ना केवल सोशल जस्टिस बल्कि एक तरीके से एक ब्रिज का काम करना between people and what is happening on the ground, that is what media does. एक नया रोल भी हम मीडिया वाले आजकल करते हैं, वो है ओपिनियन मेकिंग का, जिससे मैं बहुत हद तक अग्री नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप अच्छाइयों की बात करें तो मुझे लगता है ना केवल स्कैम्स को उजागर करना, जो कि 2010 तक हम देखते थे कि हर तीसरे दिन एक नया स्कैम निकल कर आता है, बल्कि एक्चुअल में ग्राउंड में क्या हो रहा है उसको बाहर लेकर आना लोगों के सामने, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। और पिछले 1.5 साल में तो हमने देखा कोविड के दौरान स्पेशली कि अगर शायद मीडिया ना होती तो हमें नहीं पता चलता कि एक्चुअल में डेथ फिगर्स क्या हैं, एक्चुअल में हॉस्पिटल्स के क्या हाल हैं, डेड बॉडीज को कहाँ बर्न किया जा रहा है, किस तरीके से एक मैसिव लेवल पे जो मिसमैनेजमेंट हमें देखने को मिला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो मुझे लगता है 1.5 साल में बहुत बढ़ चढ़कर उजागर हुए। लेकिन ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो मीडिया की जो डेवलपमेंट है, मीडिया की ग्रोथ है, वो सिर्फ इसलिए हुई थी कि सरकार क्या कह रही है या सरकार क्या कर रही है ये जनता तक पहुंचाना। पिछले 75 सालों में काफी बदलाव आए, काफी पहलू निकल कर आए मीडिया के जो हमने देखे। मीडिया ना केवल डिवाइड हुई, जो कि एक लेफ्ट मीडिया है, एक राइट मीडिया है, एक सरकारी मीडिया है, एक गोदी मीडिया है, एक एक जिसे आप कहते हैं कि एक मैसिव डिवाइड हमें देखने को मिला पिछले कुछ सालों में। लेकिन हमने ये भी देखा कि किस तरह मीडिया ने कुछ ऐसे सोशल एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस का काम किया जो शायद अगर मीडिया ना होती, फ्री प्रेस ना होती इस देश में तो नहीं हो पाता। तो शिवांग ने कवर किया, काफ़ी हद तक मेजर इवेंट्स को कवर कर लिया है। लेकिन मैं अन्ना हज़ारे पर शिवांग बात कर रहे थे और मुझे आज भी याद है कि उन दौरान मैं कॉलेज से निकल कर ही आई थी, तो मैं एक फ्रेशर थी उस वक्त, और जर्नलिज्म फ्रेशर थी, तो काफ़ी बढ़ चढ़ कर मैं वो जाती थी, वहाँ पे कवर करती थी, डंडे भी खाए हैं काफ़ी हद तक। तो हमने देखा कि जो एक तरीके का जो मैसिव चेंज और रिवॉल्व, द फैक्ट दैट द मीडिया हैज़ रिवॉल्व्ड, इट हैज़ कम बैक, देयर हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंड आफ्टर दैट टाइम. During the phase of 2010 to 2014, those 4 years were very crucial in forming the media that we see today. And apart from all the social good that media has done, there's a lot of bad also that media is doing now. And those 4 years, I think, are responsible. I will, of course, get into more details of what those 4 years were and how they were important. But I think उससे पहले का जो सेशन है, अक्सर लोग पूछते हैं कि मीडिया ज़्यादा सवाल पूछने लगी है 2014 के बाद, ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट हो गई है। तो उन लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता चला कि कांग्रेस में इतने स्कैम्स हुए, आपको कैसे पता चला कि इतने मैसिव लेवल पे 2G हुआ, CWG हुआ, नोशनल लॉस हुआ, कोल स्कैम हुआ? आपको इसीलिए पता चला क्योंकि मीडिया वाज एक्टिवली रिपोर्टिंग दैट टाइम. सो आई वुड से एट एवरी पॉइंट इन टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मीडिया देयर हैज बीन गुड, देयर हैज बीन बैड, और अक्सर हम बैड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, गुड पे नहीं ध्यान देते हैं, पर काफ़ी हद तक मीडिया ने एक तरीके से सोशल जस्टिस का काम किया है, पर्टिकुलरली हमारे देश में. Yes, ma'am. I want to add one point. I think media has become a medium which connects people to the reality.
Yes, sir. If Utkarsh sir wants to add anything, he can add. ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट आर कवर्ड और शिवांग सर और श्वेता मैम ने जो रिलेटेबल पॉइंट्स रखे हैं जो पास्ट 10 एंड 20 ईयर्स में हम सब ने, क्योंकि एज अ एस्पायरिंग जर्नलिस्ट मैं भी उस समय चाहे अन्ना मूवमेंट हो रहा हो, जैसिका लाल केस रहा हो, तो इस सबको हम रिलेटेबल कंटेक्स्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट की बात की जाती है मीडिया को लेकर, नेगेटिव अप्रोच के साथ मीडिया काम कर रहा है, रियलिटी उससे वो सब दूर है। और सच बात तो यह है कि अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो सारी चीजें एक ही पॉइंट पर खड़ी हो जाती है कि हर कोई भी फील्ड अपना 100% सही नहीं दे सकता। हम मीडिया को अगर कटघरे में खड़े करते हैं तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हर फील्ड ही अपना 100% अगर देता है हो तो उसका एग्जाम्पल कोई भी दे दे। सच बात तो यह है कि हर फील्ड को लेकर कोई ना कोई मिसमैच और कुछ ना कुछ खामियां हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन मीडिया को जिस कंटेक्स्ट में आज मीडिया को लाकर खड़ा कर दिया गया है, जितने भी सो कॉल्ड मीडिया टाइकून बना दिए गए हैं, मीडिया हब्स बना दिए गए हैं और उनको गोदी मीडिया और ना जाने क्या क्या फ्रेजेस दे दिए हैं, लेकिन उससे उसकी मीडिया की जो अप्रोच है और मीडिया का जो कहते हैं विश्वसनीयता है वो कम होती दिख रही थी। लेकिन हमारे पास दो प्लेटफॉर्म्स इस दौरान आए, चाहे वो हम डिजिटल की बात करें चाहे हम वेब की बात करें, तो इन दोनों ने ही, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इन दोनों को जो नेगेटिव अप्रोच दी जा रही थी उसको कम करने की कोशिश की। और सच बात तो यह है कि इंडियन मीडिया को जो क्षति पहुंचाई जा रही थी उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कई तरह से कवर भी किया, क्योंकि डिजिटल मीडिया सबके इजीली एक्सेसिबल आज के समय में मीडियम है। और जितने भी हमारे चैनल्स हैं या पेपर्स हैं वो सभी प्लेटफॉर्म्स पे मिलते हैं, तो कोई भी अब इन सब से दूर नहीं है। अब इजी टू एक्सेस है तो इस वजह से आप एक क्लिक दूर हैं हर किसी चीज के लिए। तो आपको अपना जितना भी रिलेटेबल कंटेंट या किसी भी कंटेक्स्ट में आपको रीड करना है या देखना है तो वो आप क्या कहते हैं किसी भी समय देख सकते हैं। और अगर आपको उसका कंपैरिजन करना है तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आज हमारे पास फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं और ये सब चीजें हैं, पीआईबी ने बहुत सारी चीजें दे दी हैं, क्योंकि फेक कंटेंट की बात आने लगी है। फेक कंटेंट नहीं होता है, जैसे फेक न्यूज कहा जाता है, लेकिन ये कहा जाए कि फेक न्यूज है तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी न्यूज फेक होती है, क्योंकि अगर वो फेक है तो वो न्यूज नहीं है, और अगर वो न्यूज है तो वो फेक नहीं है, क्योंकि न्यूज बहुत ही अ, अ, मतलब फेजेस से गुजर के आपके पास पहुंचती है और एक उसका क्या कहते हैं पूरा न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है कि भैया कुछ ना कुछ अगर उसमें खामी है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। तो फेक न्यूज जो फ्रेज है मैं उससे कभी भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और सच बात तो यह है फेक न्यूज नहीं फेक कंटेंट होता है। और बाकी एज शिवांग सर एंड श्वेता मैम सेड कि जो भी हमारे अर्लियर कॉन्सिक्वेंसेस रहे अलग अलग मूवमेंट्स के, तो उन्होंने मीडिया की अप्रोच को सुधारने का काम किया है, ना कि उसे लोगों के सामने गलत साबित करने का। Yes, sir. Thank you so much, sir and ma'am. Yes, sir. Sir, you are on mute. मैं उत्कर्ष की बात पे ना एक उत्कर्ष ने अच्छी बात कही स्टार्टिंग में, उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है बार बार कंटेंट को लेके कि मीडिया का कंटेंट अच्छा है या बुरा है, उसमें खामियां हैं, श्वेता ने भी जिक्र किया और बहुत तरह की चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद श्वेता एग्री करेंगी। श्वेता आप यूके में जी रही है ना? हाँ, तो आप में से जितने भी लोग बाहर गए हों, यूके गए हों या यूएस गए हों या किसी और डेवलप्ड कंट्री गए हों, तो आप देखेंगे कि वहाँ एक अखबार की जो कीमत होती है, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, न्यूयॉर्कर हो, जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं,
उनकी जो कॉस्ट है, अगर आप उसके डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि वो करीब अखबार 150 रुपए का, 200 रुपए का पड़ता है, एक एक अखबार आपको। बिल्कुल ठीक है। जी। और इंडिया में क्या होता है कि मैंने खुद ने काम किया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो में। हम लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं, प्रिंटिंग इतनी महंगी है, आजकल तो जीएसटी वगैरह भी लगता है, तमाम चीज़ें हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप अखबार खरीद लेते हैं केवल 4 रुपए का। तो मैं बड़ा गंभीर हूँ इस मामले पे, और क्योंकि दर्शक बहुत सारे जुड़े हुए हैं, और मैं ये हर मंच पे बोलता हूँ, ये वाली बात जहां मुझे बोलने का मौका मिलता है, कि आप शिकायत तो बहुत करते हैं कंटेंट को लेके, आप ये भूल जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेके गली मोहल्ले में जो बिजली चली गई, चकचोरी हो गई, चेन स्नैचिंग हो गई, उस खबर तक आपको 3 से 4 रुपए के अंदर आप उसके कंज्यूमर बन जाते हैं पर डे बेसिस पे। वो अखबार आपके घर में महीनों पड़ा रहता है, और जब वो 5-10 किलो का हो जाता है रद्दी, तो उसको बेच के आप फिर पैसा कमा लेते हैं कबाड़ी वाले से। यहां तक कि वो अखबार बिकता है, फिर मार्केट में आप उसके ऊपर समोसा रख के खा लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि एक कंज्यूमर के तौर पे आप क्या कर रहे हैं। वही अखबार अगर आप जाके वॉशिंगटन डीसी में खरीदेंगे एयरपोर्ट पे, वो आपको 200 रुपए का अखबार मिलेगा। इसलिए वहां के पत्रकार खबरों के लिए मेहनत करते हैं, इसलिए वहां की खबरों की वैल्यू होती है। इसलिए आप टाइम मैगजीन को रेपुटेशन के तौर पे देखते हैं। इसीलिए जब टाइम मैगजीन या फोर्ब्स कोई आदमी को कहता है कि ये वर्ल्ड के टॉप 50 आदमी है, तो आप उसकी वैल्यू करते हैं, क्योंकि वो उसकी कॉस्टिंग भी है, उसकी रेपुटेशन भी है। आप यहाँ बड़े से बड़ा अखबार, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, 5-6-7 रुपए में खरीद लेते हैं। और कितने पन्नों के अखबार आते हैं, सोचिए आप, 40-40 पन्नों के अखबार आते हैं, कितनी महंगी प्रिंटिंग है, तमाम चीजें हैं। पत्रकारों की जो सैलरीज हैं वो कहाँ से निकलेंगी, ऑफिस के खर्चे कहाँ से निकलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, ये तमाम चीजें कहाँ से निकलेंगी, इसके बारे में भारत के लोग नहीं सोचते। उनको बहुत कम पैसों में, आज आप चलिए अखबार की बात छोड़िए, आप चैनल की बात कीजिए। एनडीटीवी का मैं एग्जांपल देता हूँ। एक दो तरह के चैनल होते हैं, पेड और अनपेड, फ्री टू एयर और सम चैनल्स आर पेड। आप डिश टीवी का कनेक्शन लेते हैं, मात्र 220 रुपए में आपको बेसिक कनेक्शन मिल जाता है। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर आप जी न्यूज देख रहे हैं, वो तो फ्री टू एयर है, या इंडिया टीवी फ्री टू एयर है, एनडीटीवी कहता है साहब मैं आपके महीने के केवल 3 रुपए लूंगा, केवल 3 रुपए। 3 रुपए में आप पूरा महीना न्यूज देखेंगे, और आप कहते हैं कि चैनल जो है हमको बढ़िया खबर दिखाए और एकदम स्वच्छ पत्रकारिता करे, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, ये फालतू में सरकारों से ऐड लेते हैं, ये सर्फ बेचते हैं, ये बाम बेचते हैं, ये तेल बेचते हैं। तो कहां से खर्चा निकलेगा अगर आप लोग, क्योंकि कंज्यूमर तो भारत का मीडिया को पैसा देने को तैयार है नहीं, तो चैनल चलेगा कैसे। करोड़ों रुपए की ब्रॉडकास्टिंग फीस ले लेता है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हर साल, सैटेलाइट चार्जेस अलग हैं, ऑफिस मेंटेनेंस, तमाम चीजें, बिजली का खर्चा, मतलब क्या क्या गिनाऊं मैं आपको। तो किस तरीके से होगा ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सच में अच्छी खबरें चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अच्छे कंटेंट की, तो आप पैसा खर्च करना शुरू कीजिए। जब आप मजबूर करेंगे अपनी पत्रिकाओं को, अपने अखबारों को, आप एक सजग रीडर और सजग व्यूअर के तौर पे पैसे देके मजबूर करेंगे आप कि हमें अच्छी खबरें चाहिए। और मैं आपको बताऊं, भारत में ये शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट अच्छे निकल रहे हैं मैगजीन्स में, डिजिटल पे, जहां पे वो हैवी चार्ज करते हैं आपसे। वो एक स्टोरी के आपसे 100-100 रुपए लेते हैं, या महीने का सब्सक्रिप्शन होता है 500-700 रुपए का, तो वो आपको अच्छी स्टोरीज देते हैं। इवन अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो उनकी उसमें कॉलम आता है जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं वो आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां क्वालिटी मिलेगी आपको। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए, मुझे लगता है आपका कंटेंट अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम डेवलपिंग से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ेंगे, काफी चीजें मुझे लगता है बेहतर होंगी। काफी व्यूअर्स और हमारी ऑडियंस के अंदर ये अच्छी बात है कि क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है मीडिया को लेके, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो हेल्प भी करेगा मीडिया को। और एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने लिखी है, मुझे नहीं पता, उन्होंने लिखा है कि व्हेन कंज्यूमर ऑफ न्यूज they should remember that when you get a product for free, you yourself become a product. So don't become a product, और थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, मजबूर कीजिए अपने अपने न्यूज चैनल्स को, अपने अखबारों को, अपनी पत्रिकाओं को आप मजबूर कीजिए कि वो आपको अच्छा कंटेंट दे
और मैं आपसे निश्चित तौर पे एक पत्रकार होने के तौर पे वादा करता हूँ कि जब आप उन्हें अच्छे पैसे देंगे तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी जाके सरकारों के आगे हाथ जोड़ के सरकारी एड्स लेने की। आप देखते हैं अखबारों में फ्रंट पेज पे सरकारों के कितने कितने बड़े बड़े एड्स होते हैं, आधा अखबार तो एड से भरा होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपको वहां जगह इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे। जो पैसे दे रहा है वो जगह खरीद रहा है, वो स्पेस खरीद रहा है। तो इन चीजों पे भी मुझे लगता है ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ कोसने से कुछ नहीं होगा कि आप कंटेंट को कोसते रहें, फिर तो कोसते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। Yes, sir, 100. The good content, it will be there in the market once it is appreciated. The thing is, if somebody is presenting something, it needs to be valued, it needs to be appreciated. Otherwise, though, definitely. Yes, truly agreed. Thank you, sir and ma'am. We have a next question in the chat box. Uh, in India, there are around 800 channels and 36,000 weekly magazine publications and hundreds and thousands of web portals. On the face of it, there is a lack of diversity on news coverage. Shruti is asking, she wants to know your opinions regarding this. Do you want me to go first? Yes, ma'am, sure. Well, Shruti is right. Despite the number of publications that we have, to my knowledge, it was 400 channels. If it's become 800, then I'm not updated and I'm not up to date. But yes, with the number and diversity of channels that we have and the weekly and daily publications, शिवांग ने बताया कितने सारे चैनल्स हैं, कितने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, पर इसके बावजूद कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कुछ रीजन ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कभी कवर किए ही नहीं जाते और नहीं, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वो रेवेन्यू मेकिंग मॉडल नहीं है, कवर शायद ना भी किए जाएं। हम अक्सर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अपने आप में, जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, द 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उनसे हमें काफ़ी कम न्यूज़ कवरेज मिलती है। सो इफ़ देयर इज़ अ रेप इन द नेशनल कैपिटल, अगर किसी युवती का रेप होता है नेशनल कैपिटल में और उनकी मौत हो जाती है, वही खबर जब नॉर्थ ईस्ट से आती है या झारखंड से आती है या फिर कई बार हम देखते हैं कि उड़ीसा से आती है, तो उस तरीके से कवर नहीं की जाती जिस तरीके से दिल्ली, यूपी और ये जो कुछ प्राइमरी स्टेट्स जिनको हम मान के चलते हैं उन स्टेट से कवर की जाती है। तो ये एक तरीके से ये जो अनइवन कवरेज है, ये आज से नहीं, काफ़ी सालों से है और इस वजह से कई ऐसी ज्योग्राफिकल एरियाज हैं जो खुद को एलिएनेटेड महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी हो जाए यहाँ पर कवरेज नहीं मिलेगी। कई सारे मेरे कॉलीग्स रहे हैं जो झारखंड से थे, बिहार तो फिर भी कवर होता है, झारखंड तो कवर किया ही नहीं जाता है, झारखंड से थे, उड़ीसा से थे, जिनका कहना था कि हमारे रीजन में हर तीसरे दिन भूखमरी की वजह से किसी की मौत होती है। इसलिए मौत होती है कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका आधार कार्ड उनके राशन कार्ड से, जो उनका बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड है, उससे लिंक्ड नहीं है। कई बार उनको कोई बेनिफिशियरी स्कीम्स नहीं मिलती, स्वच्छ भारत के अंदर उनके घर में टॉयलेट नहीं बन पाता क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन प्रेस कवरेज इसकी लोकल मीडिया तक सीमित रह जाती है, नेशनल मीडिया में ये कभी आ ही नहीं पाता है। हाउ मेनी डिबेट्स हैव यू सीन इन द लास्ट maybe a year or 2 years when tribal issues were discussed, when indigenous issues were discussed, when women issues were discussed, when development was discussed? एक बार बजट के दौरान जब बजट प्रेजेंट किया जाता है, कुछ 1-2 दिन तक हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैरामीटर्स डिस्कस हो रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में बढ़ चढ़कर कवरेज हो रहा है और साल भर हम देखते हैं कि बजाय हम कितने भी डाउनवर्ड स्लोप ले लें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं कोई कवर नहीं करता, बेरोजगारी कहीं कोई कवर नहीं करता। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो टबू टॉपिक्स बन के रह गए मेन स्ट्रीम मीडिया के। मेन स्ट्रीम मैं इसलिए कह रही हूँ, आई नो शिवांग में नॉट लाइक इट, बट द रीजन आई एम सेइंग मेन स्ट्रीम इज बिकॉज डिजिटल इज स्टिल कवरिंग इट। डिजिटल मीडिया आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो इज्जत है वो बना के रखता है मीडिया की, क्योंकि आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स जो कि मेन स्ट्रीम दूर टच भी नहीं करना चाहता। श्वेता, मैं तो खुद मान रहा हूँ कि मैंने खुद ने ये कहा बिल्कुल कि डिजिटल को मेन स्ट्रीम मान लेना चाहिए अब। बिल्कुल जी, सही कह रही हैं आप। तो मैं इस वजह से दोनों को सेपरेट रखती हूँ शिवांग। डिजिटल अक्सर मैं बोलती हूँ कि डिजिटल है, ये मेन स्ट्रीम है। रीजन ये है कि मुझे लगता है जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं तो कई क्रिटिसिज्म है जो डिजिटल पे वैलिड नहीं होते। डिजिटल पे वो क्रिटिसिज्म इसलिए वैलिड नहीं होते क्योंकि आज भी
पैसा कई बार या तो लोग दे देते हैं, बल्कि और ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि मैं काफी स्टार्टअप्स के साथ जुड़ी पिछले 1-2 साल में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, टीवी का लाइसेंस नहीं लेना पड़ रहा है, ऑन एयर आप फ्री में जा रहे हैं, इतनी सारी आपको कवरेज इसलिए मिल रही है क्योंकि लोग आपका कंटेंट लाइक कर रहे हैं, तो आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका कोई माई बाप नहीं है ऊपर बैठा हुआ जो बोल रहा है कि इसको इसी एंगल से कवर कीजिए, देखिए ये डेथ हुई है इसको कवर मत कीजिए, देखिए ये रेप हुआ है पर इतना ही कवर करना है। तो क्योंकि आपको डायरेक्शंस नहीं मिलते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, तो आप कई हद तक एक स्टोरी को ढंग से कवर कर पाते हैं, इन डेप्थ कवर कर पाते हैं, क्योंकि कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। देखिए पैसा बनाना जरूरी है, वरना मीडिया नहीं चलेगी। अगर जैसे कि शिवांग ने कहा, जब तक पैसा नहीं आएगा आप एक्सपेक्ट भी मत करिए कि आपको ब्रिलियंट कवरेज मिलेगी, आपको ऐसी कवरेज मिलेगी जो कहीं नहीं मिल पा रही है। आप फोर्ब्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसी कवरेज आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसको पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते। तो कैसी कवरेज मिलेगी आपको कवरेज मिलेगी कि राहुल गांधी ने ये टिप्पणी क्यों दी, क्या कवरेज मिलेगी कि राहुल गांधी ने ये बयान क्यों दिया कि पंजाब में सरकार गिरी तो ये ऑपोजिशन आपकी कितनी खराब है, कि आपकी ऑपोजिशन पार्टीज का कुछ आता नहीं है, कि एक पप्पू है, एक शेर है, एक की छाती बड़ी है, एक की छाती छोटी है। तो यही तक कवरेज आपकी सीमित रह जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इससे ऑडियंस मिलती है। क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी मीडिया में पिछले 7 साल से रही हूँ, मैंने अक्सर देखा है कि उनको लोगों को लड़वा के मजा आता है। मैंने कई बड़े नाम है जो नहीं लेना चाहूंगी, जब टीवी डिबेट्स होती थी तो हाई फाइव दिए जाते थे डिबेट्स में बैठ के कि हाँ चलिए, जो लड़ाना हमारा मकसद था वो लड़ गए, मजा आ गया, तो कुछ देर के लिए चुप हो जाइए, कैमरा उन पे पैन कर दीजिए, फुल स्क्रीन ले लीजिए और देखिए कि कितनी देर तक आपकी ऑडियंस कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि सर्कस किसको नहीं पसंद? Who doesn't like circus? Who doesn't like two people fighting? If there are two people fighting in the street corner where I'm living from, I will go there to watch, because that's human tendency. So the news mainstream media today, unfortunately, is a circus. They know how to make money, and the only way they can make money is by getting topics that are divisive in nature, by getting topics that are bound to get eyeballs. And so therefore, serious issues, serious developmental problems, problems with respect to economy, problems with respect to healthcare, और पिछले 2 सालों में जो हमने देखा कि growing violence on women, violence on children, सारे के सारे टॉपिक्स एक तरीके से वो ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। यहाँ पर मुझे लगा कि डिजिटल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हो, चाहे वो एनवायरमेंट इश्यूज का से लेकर हो, चाहे वो विमेन्स इश्यूज हो, चाहे वो चिल्ड्रंस इशू हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो। अगर डिजिटल मीडिया नहीं होता तो कई हद तक शायद हमें पता ही ना चलता कि कौन से इश्यूज हैं जो कि इस देश के डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। दे आर प्लेगिंग द ग्रोथ ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो आई सपोज I agree when your colleague says that there is not enough coverage of certain issues and certain subjects in certain areas, and that continues to be a problem. So therefore, it is my humble request to all of you, students especially, like, subscribe and pay to content that you know is independent. अगर आपको लगता है कि आपको बदलाव चाहिए तो आपसे शुरू होगा। If you need change, you need development, it starts with you. It starts with us as people. So like, subscribe and pay for content that you think is worthy of your time, is worthy of your attention, and only then will you see a change. Because until there's a growth in the development of free press, unless there's a growth in the number of people who are giving you good content, agar unko aap paisa nahi denge, support nahi denge, unko nahi dekhenge, and instead at every 9 o'clock you watch into the same old debate with the same old BS served to you on a platter, if you do not stop doing that, there is not going to be a change. We will continue to see the content which is plagiaristic, hyperbole, everyday nuisance, shouting, scolding, people throwing water at each other, walking out, abusing. So all that you see, all that you find funny, and that's the reason maybe half of us actually tune into TV today, because we actually find it funny. If you don't stop doing that now, you cannot expect to change. So that would be my humble submission. And I think I do agree that yes, there is a problem here. There's a problem with how we cover certain issues. There's a problem with how we cover certain areas in this country which have always felt isolated. Talk to a Northeasterner today and they'll tell you how they think they're not a part of mainstream India. Talk to a Kashmiri today. हम अक्सर कश्मीर की बात करते हैं, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आई डोंट वांट टू पुट एनीवन इन ट्रबल, पर अक्सर हम कश्मीर की बात करते हैं। आखिरी बार आपने कब सोशल सिक्योरिटी, टेररिज्म के अलावा आखिरी बार आपने कब सुना था कि किसी ने कश्मीरी व्यक्ति की उनके मुद्दों की बात की? किस तरीके से वो एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं? इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो कैसे एग्जाम्स दे रहे हैं?
है ना। आप सोचिए कि आपका पूरा दिन कैसे जाएगा अगर आपसे कोई आपका कोई फोन ले ले और इंटरनेट कार्ड पे एक दिन, तो आपका दिन कैसे बीतेगा। आखिरी बार कब हमने सुना कि कश्मीरियों को क्या दिक्कत है, उनकी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उनकी एवरीडे प्रॉब्लम्स क्या हैं, व्हाट आर दे स्ट्रगलिंग विद। व्हेन डिड वी लास्ट हियर Kashmiris being represented? When did we last hear Northeasterners being represented? So unless that happens, I think it's very difficult to call this media a very diverse media. There are efforts, there are attempts being made. We have a Mojo channel. We have Karma Palijor, who's actively covering Northeast. He was a former colleague of mine in CNN. He went back to his roots. He's now actively covering Northeast, and at least we are getting some stories back from Northeast. But mainstream media has disappointed. I think there's still hope, and it's happening in the way of many new journalists who are leaving mainstream, who are leaving TV, and who are going back on the ground, who are covering stories on the ground once again. And that's, I think, a positive development. श्वेता, एक हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो जो बात आपने कही वो उसको मैं 4 लाइनों में कहना चाहता हूँ। तुम्हारे एक प्रोफेसर थे, उनका एक शेर था कि तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे, शब्दों की तासीर को तुमने पहचाना ही नहीं, नर्म लहजे से पत्थर भी पिघल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के उस पानी की तरह, दरिया बनते तो कब के आगे निकल सकते थे, और हाथ से इतने हुए हैं वतन में मेरे कि खून से छपके अखबार निकल सकते थे। तो ये शेर मैंने इसलिए सुनाया है कि जो बात श्वेता ने कही मैं इसमें एग्री करता हूँ। आप सब लोग यंग लोग हैं, कॉलेज में हैं, तो ये हालात जो बदलेंगे ये आपके थ्रू और आप जैसे बच्चों के थ्रू ही बदलेंगे। तो डेफिनेटली आप पुश कीजिए कि चीज़ें बदलें और कंटेंट अच्छा हो, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि हम लोग आपके लिए अच्छी स्टोरीज परोस सकें। Sure, sir, sure. Yes, sir, very true. Utkarsh sir, if you want to add. As Shweta ma'am and Shivang sir said, सारी बात का सार सर के उसमें भी निकल गया जो सर ने लास्ट में कोट किया। लेकिन उसके बाद भी हम एक चीज अभी भी क्योंकि अभी ये हाइप पर नहीं है जो हम कहेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक चीज जो अभी मैम ने ही ऐड की कि गाली देने से और पानी फेंकने से और ये पता नहीं क्या क्या करने से चैनल्स को हाइप मिल रही है या वो अपनी कवरेज बढ़ाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि अगर हम उसी पॉइंट को एक दूसरे एस्पेक्ट में देखेंगे तो पता चलेगा कि जो जर्नलिस्ट हैं मेनली उनको भी ये कितना हार्म कर रहा है, चाहे उनकी मेंटल हेल्थ से लेकर हो चाहे कुछ हो। हमने अभी भी देखा कुछ दिनों पहले कई ऐसे केसेस आए जिसमें जर्नलिस्ट मेंटल हेल्थ और जो पैनलिस्ट आते थे वो मेंटल इश्यूज की वजह से, एंगर इश्यूज की वजह से कितना ज्यादा मतलब वो एज पैनलिस्ट आए और उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो हम सब देख सकते हैं कि कोई किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया। तो ये चीज ऐसी है कि अगर चैनल्स और जितने भी पैनलिस्ट जाते हैं किसी चैनल में तो उसको बस एक अप्रोच के थ्रू कि हमें अपना कवरेज और नेटवर्क बढ़ाना है, उसके लिए उनको भिड़ा दें और ये सब चीजें कर लें। तो उससे न केवल उनके जो होस्ट हैं चाहे वो जर्नलिस्ट हो या जो पैनलिस्ट आए हैं उन दोनों की ही मेंटल हेल्थ भी उससे प्रभावित हो रही है। शिवांग सर इस बात को समझते हैं क्योंकि वो क्योंकि अभी इंडियन हेड में काम कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने जिस भी चैनल में काम किया है उनके उन सब चैनल्स में ऐसा अभी भी हो रहा है। चाहे हम अगर रोहित सरदारा सर की बात कर लें या लास्ट ईयर राजीव त्यागी जो कांग्रेस के पैनलिस्ट थे उनकी बात कर लें, तो ये सबसे बड़ा आज हम अभी इस इशू को बिल्कुल छू भी नहीं रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं, कोई कहना भी नहीं चाहता है। लेकिन सच बात यह है कि यह अभी आने वाले समय में बहुत घातक इंडियन मीडिया के लिए भी होने वाला है कि अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया अभी हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, धकेल नहीं सकते, क्योंकि अभी देखने वाला भी मीडियम वही है, सुनने वाला भी मीडियम वही है, डिजिटल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन सच बात यह है कि न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल इन दोनों को हम अभी किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा सबसे पहला मीडियम रहे हैं। लेकिन हम लोगों को मतलब एज एस्पायरिंग मैं तो यही चाहूंगा कि आने वाले समय में जैसे श्वेता मैम ने कहा कि यू शुड पे फॉर व्हाट यू फील लाइक कि वो कर रहा है ऐसा, मतलब वो क्या कहते हैं कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए काम कर रहे हैं तो उसके प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम उस जर्नलिस्ट से लेके उस पैनलिस्ट तक उसकी भी मेंटल हेल्थ का
अगर चैनल ख्याल नहीं रखता है तो उस बात को अब उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे उस चैनल के मालिक का कुछ नहीं जा रहा है, वो तो अपनी अर्निंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं इस बात को अभी कहने में भी हिचक नहीं रहा, क्योंकि मेरा तो अभी फिर भी शुरुआती फेज है, लेकिन मैं इस बात को हिचकना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ये मेरा आने वाला कल है। अगर मैं भी कहीं जाता हूँ या आने वाले समय में भी अगला कोई स्टेप लेता हूँ, तो मेरे साथ भी कई ऐसी चीजें होंगी जो मेरे हेल्थ और इन सब चीजों को इफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन ये बात अभी नहीं उठाई गई, तो आगे बहुत ज्यादा जो अभी हम लोग इस बात के लिए रो रहे हैं कि हमारा मीडिया के साथ ऐसा हो रहा है, तो आने वाले समय में ये टॉपिक भी सीवियर कंडीशन में जाएगा ही, इस बात को हम नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टॉपिक और क्रूशियल स्टेज है अभी के लिए, और ये ऐसे कब नहीं हो सकता। इसके लिए हम ही जितने भी, चाहे शिवांग सर हो चाहे श्वेता मैम हो, उन सब ने मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर और ऐसे कई स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, तो उनकी बातों को अभी अगर वो प्रेजेंट इस स्टेज पे करते हैं तो वास्तव में चेंज आना निश्चित है। और मैं इस बात को लेकर शिवांग सर और श्वेता मैम से खुद क्या कहते हैं आज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चीज को लेकर भी कुछ ऐसा काम किया जाए, आगे लेकर जाया जाए कि पैनलिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों की ही मेंटल हेल्थ को हार्म ना करते हुए, और एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो मैंने अभी आपको पिछले दिए, तो ये कोई बहुत हल्का पॉइंट नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सीवियर कंडीशन होने से पहले हमें इसको रोक लेना चाहिए, ये मैं कहना चाहता था। उत्कर्ष, थोड़ा सा जस्ट आई टेक 5 minutes टू ऐड समथिंग टू इट। जब मैं टीवी में थी तो आई वाज नॉट एट अ लीडरशिप रोल, आई वाज नॉट एट अ मैनेजमेंट रोल, आई वाज इन द मिडल ऑफ इट, राइट। अक्सर आप देखते हैं कि जब आप हायरार्की के बीच में होते हैं ना, आप जूनियर होते हैं ना आप बहुत सीनियर होते हैं, आपका जो से है, the say that you have in bringing a change is reduced. It's very minimal. You often take directions that are given to you. As a journalist from TV background, there have been times that I've participated in debates or conducted debates where I did not want to, where I did not want to be a part of a debate which I thought did not align with my values, right? It did not give me peace of mind, but I had to. I had to because that was the mandate of the channel. One reason why I left TV was because there were many times, specifically after 2019 and the attack on the Indian soil in Pulwama, that I, as a news presenter, had to do debates and discussions that did not sit well with my own ideology and did not sit well with how I think media should conduct itself as the fourth pillar of democracy. To expect a change when you're too low in hierarchy is difficult. The point I'm getting through is that when you are too low in the hierarchy, you cannot expect a change. You can push back. दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप पुश बैक कीजिए, वहां से आपको जवाब आएगा नहीं चलेगा, यही चलेगा, करना है करो वरना रहने दो, तो आपकी पोजीशन किसी और को मिल जाएगी। या दूसरा है छोड़ दो, अपना कुछ करो। तो अक्सर मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देती हूँ कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाइए, सीखिए, लेकिन लास्ट में करिए वो जो पत्रकारिता आपको करनी है, journalism that sits well with your conscience. And that's one reason why many journalists today, as you may have seen, चाहे वो विनोद दुआ हो, चाहे वो फे डिसूजा हो, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं who've gone independent, who have left their traditional well-paying media jobs to start a YouTube channel. There is a reason. There is a reason why Sakshi Joshi every day gets abused, right? The reason being that these guys maybe at a time in their life understood कि अगर हमें अच्छी पत्रकारिता करनी है तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉर्पोरेट मीडिया का बैगेज है, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल बैगेज है, उसको हमें शेड करना ही पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब हम खुद शुरुआत करें। तो अक्सर आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप यू टो द लाइन दैट हैज बीन गिवन टू यू, or you work in an institution that actually does good journalism. And believe me, there are hardly left, hardly a couple, handful, गिन सकते हैं आप 5 6 7 ऐसे होंगे जो आपको लगता है मेन स्ट्रीम है, अच्छा काम कर रहे हैं और इनके साथ हम जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा इनकी और मेरी आइडियोलॉजी में। तीसरा ऑप्शन आपके पास यही होता है कि आप खुद शुरुआत करें, और मैं अक्सर यंगस्टर्स को यही एडवाइस देती हूँ क्योंकि इट्स पॉसिबल, इट्स चीप, इट डज नॉट रिक्वायर मनी। ईच ऑफ यू who is listening today, who wants to be a journalist, all you have to do is listen to the next story that is being told to you. It can be anyone. स्टोरीज आप देखेंगे कि अक्सर आपके घर में जो हाउस हेल्प आते हैं उनसे, या किसी रिक्शा ड्राइवर में जिसमें आप लेकर जा रहे हैं उनसे, या वो ऑटो ड्राइवर या वो माइग्रेंट लेबर जो नीचे घर बना रहे हैं उनकी, कोई भी
कोई भी व्यक्ति एक अच्छी स्टोरी आपको बता सकता है. Any person can be a good protagonist for a good story. It can be a source of a story, right? And it's important that you identify a source of a story and tell it today and tell it now. Start becoming a journalist today, so that by the time you're my age or you're Shivang's age, you'll realize that you may not need a job because you've already done so much. आपको YouTube से आप इतना पैसा थोड़ा बहुत कमा पा रहे हैं कि आप अपना घर चला सकते हैं. ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमें ये डिनाई नहीं करना है, हम नहीं कर सकते कि भैया हमको भी पैसा चाहिए, हम भी कमाना चाहेंगे, है ना. अगर हम नहीं कमा पाएंगे तो हम क्या फायदा है. ऐसी पब्लिक सर्विस ऐसी तो नहीं कर रहे हैं कि हम दान ही दे रहे हैं, वापस हमें नहीं चाहिए. एवरी जर्नलिस्ट नीड्स टू अर्न मनी टू सस्टेन. Sustenance is important, and if we can't sustain, then do not blame journalists. Why are you taking high paid jobs and then towing the line of your media company? There is no way out, right? This is all the degree that we have. So please understand that the way to get around this is to ensure that you start today, you start now. Open a YouTube channel, open a Facebook page, open an Instagram page, and make sure you do good work starting today. Stories are being told every day. Just have to keep an open eye and an open mind. कहीं से भी खबर मिल सकती है, कोई भी व्यक्ति आपको एक अच्छी खबर तक पहुंचा सकता है, एक अच्छी स्टोरी बता सकता है. Keep your eyes and ears open and go out and start reporting. So maybe just then you may not need to carry a corporate baggage along with you for the rest of your life. Yes, ma'am. Truly agreed. Yes, ma'am, surely. Thank you. Yes. We can move ahead with the next question. Good afternoon to all panelists. So my question is, in today's world of digital media, which holds rapid news outreach, does print media still hold its significance? Shweta, you want to answer or No, Shivang, I think you should. It's okay. ये वो सवाल है ना जो अक्सर कॉलेज में टीचर्स हाँ अपने लेक्चर्स में भी हमें समझाया करते थे. मैं एग्जैक्टली विश्वविद्यालय की मैं पढ़ी और मेरे हाँ प्रिंट के जो टीचर्स थे वो काफी समय तक ये लेक्चर्स देते थे. तो आई थिंक शिवांग आप लीजिए इसके बाद. देखो ये किसने पूछा ये सवाल. Sir, me. चलिए ये जिसका भी सवाल है अंजलि या प्राची, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल ठीक कहा श्वेता ने. जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारी एक प्रोफेसर थी, तो वो हमको पढ़ा रही थी डिजिटल मीडिया उस ज़माने में. तो हम लोग उनसे कहते थे कि ये सब बकवास बातें हैं, और भारत जैसे देश में जहाँ कंप्यूटर लोगों के घरों में नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे डिजिटल मीडिया का क्या काम. वहाँ तो ट्रेडिशनल अखबार ही चलेंगे. कुछ साल निकले और हम लोग गलत साबित हो गए. और लेकिन जो आपका सवाल है कि अखबार की रेलिवेंस क्या है आज भी, देखिए आज की तारीख में इंडिया में, सिर्फ इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा अखबार और मैगजीन्स हैं, 1 लाख से ऊपर, जिसमें से आई थिंक आई शुड डेफिनेटली कोट दिस थिंग, हमारे पास 17,000 न्यूज़पेपर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं के, रीजनल भाषाओं के हमारे पास अखबार और मैगजीन्स हैं. मोर देन 1 लाख न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं करंटली जो पब्लिश हो रही हैं इंडिया में, और ये लगातार चल ही रहा है. और जैसा कि बात की 400-800 चैनल जो भी हैं. देखिए अखबार की रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है. अखबार की रेलिवेंस इसलिए ज़्यादा है कि चैनल जो होता है वो, या डिजिटल जो है, डिजिटल हालांकि अलग तरीके से काम कर रहा है, लेकिन चैनल जो होता है ख़ास तौर पे, जिसे हम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में मानते हैं, वो आपको अपने एंगल से खबर दिखा देता है. लेकिन अखबारों की खूबसूरती ये होती है कि जो खबर आप द हिंदू में पढ़ेंगे वैसी खबर आप टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं पढ़ेंगे. जो आप ट्रिब्यून में पढ़ेंगे वैसी खबर आप हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर नहीं पढ़ेंगे. या जो आज की तारीख में, अगर मुझे पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं, जो टेलीग्राफ है उसकी हेडलाइंस, उसका फ्रंट पेज इतना सुंदर और इतना खूबसूरत होता है कि आप यकीन मानिए कि मैं ट्विटर से उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, ताकि कभी आने वाले समय में हम याद कर सकें, हमारे पास आर्काइव्स हों कि इस तरह की हेडलाइन उस दौर में लिखी गई थी. तो अखबार क्या होता है ना, आपको खबर का बहुत तरह के एंगल समझाता है. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए बुलंदशहर है, रोहतक है, उसके आगे भी जो और इंटीरियर जगहें हैं,
उस आखिरी आदमी का जो खेतों में धूप में दोपहर की 2 बजे जो फसल बो रहा है, उस तक का ख्याल जो है वो अखबार रखता है। श्वेता ने कहा नॉर्थ ईस्ट की खबरें खोई हुई हैं। आप मुझे बताइए, दिल पे हाथ रखिए, किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा से लेके महिलाओं के अपने जो कष्ट हैं, सामाजिक कष्ट हैं, उनके बारे में न्यूज़ चैनल कितनी बात करता है? होती ही नहीं है बात। लेकिन आप देखिए, आप हिंदी अखबार देखिए, चाहे दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, आपको किसी ना किसी पन्ने पे ना खेती से जुड़ी खबर मिल जाएगी, आपको पॉल्यूशन से जुड़ी खबर मिल जाएगी, आपको वो तमाम पहलू मिल जाएंगे जो चैनलों पे कभी डिस्कस ही नहीं होते, जो खो चुके हैं। ऐसे हजारों मसले हैं, ऐसे कितने सारे मंत्रालय मैं जानता हूं जो खो चुके हैं, जिनके बारे में कभी चर्चा ही नहीं होती बड़े 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 मंचों पे, बड़े बड़े चैनलों पे। क्योंकि चैनल में क्या होता है, तय होता है 6 बजे अंजना ओम कश्यप डिबेट करेंगी, 7 बजे सईद अंसारी करेंगे, 8 बजे श्वेता सिंह करेंगी, एक में हल्ला बोल होगा, एक में वहाँ गेस्ट कोऑर्डिनेशन होता है, वो अपना सारे गेस्टों को बुलाते रहते हैं और वो कॉक फाइट, मुर्गा फाइट होती रहती है, जिसका जिक्र श्वेता ने भी किया। तो वहाँ तो पूरा एक सेटअप है। लेकिन अखबारों में क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ अखबार दूध के धुले हैं, मैं तो खुद अखबार में काम करके आ चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि किस तरीके से खबरों को मोल्ड किया जाता है, लिखा जाता है। हम लोग जब अखबार में खबर लिखते थे तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जहाँ पे हमको तारीफ लिखनी होती थी किसी खबर की तो वहाँ प्रधानमंत्री का नाम आता था, और जहाँ हमको बुराई लिखनी होती थी वहाँ प्रधानमंत्री का नाम काट के सरकार लिखा होता था। तो इस तरीके से डाइल्यूट भी किया जाता है चीज़ों को। और जैसा हमने कुछ टाइम पहले देखा कोविड के टाइम पे, जिसका जिक्र श्वेता ने भी किया, कि सरकार सिस्टम में तब्दील हो गई, कि सिस्टम फेलियर है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अखबारों की रेलिवेंस अगर कम होती तो अखबार छपना बंद हो जाते। 10 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां अखबारों की हर दिन हमारे देश में छपती हैं, और ये बहुत बड़ा फिगर है, और ये आश्वासन है भारत के लोगों को कि अखबारों की जो रेलिवेंस है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इस चीज़ को लेके आप निश्चिंत रहें। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ, यंगस्टर्स को जो मैं देखता हूँ कि उन लोगों ने अखबार पढ़ना कम कर दिया है। दे लव टू रीड स्कूप वूप एंड द आर्टिकल्स रिलेटेड टू फेमिनिज्म एंड एक्सेट्रा, बट वो अखबार पढ़ना बंद कर चुके हैं। वो या फिर अगर टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदते हैं तो उसका मेन अखबार जो होता है उसको छोड़ के जो उसके अंदर छुपा हुआ डेली टाइम्स आता है, जिसमें मलाइका अरोरा फ्रंट पेज पे होती हैं, वो उसको पढ़ेंगे कि उनका अर्जुन कपूर के साथ क्या चल रहा है। वो भी पढ़िए, लेकिन मुझे लगता है कि देश के अंदर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, आपके समाज में क्या चल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत बार देखा, जिसका जिक्र श्वेता ने भी किया, पत्रकारिता ना बड़ा पैशन का काम है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो पत्रकारिता में आज की तारीख में आ रहे हैं वो ग्लैमर की वजह से आ रहे हैं। उनको लगता है हम नेताओं से मिल पाएंगे, शाहरुख खान से मिल पाएंगे, अमिताभ से मिल पाएंगे, या हम पार्लियामेंट जा पाएंगे, हम राष्ट्रपति भवन अंदर से देख पाएंगे। ये सब होता है, लेकिन ये बहुत, इसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट है। उसके आगे क्या करेंगे? जब आप मिल लेंगे तो क्या करेंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई करिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो ही आपका दिमाग भी विकसित होगा, आप में एक इंटेलेक्चुअल ज्ञान की जो पैदाइश है वो उसकी उपज होगी, और उसके बाद ही आप सामाजिक दर्शन जो है उसको आप महसूस कर पाएंगे। देखिए, रिक्शे वाले का दर्द या किसी किसान का दर्द आप तभी समझ सकते हैं जब आप वहां तक, उस जगह तक पहुंचे हों। आज की तारीख में हमारे टीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, गाजियाबाद बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। तो हम लोग जब वहां से जाते हैं, ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, तो आपको गुस्सा आता है कि आपका रूट डाइवर्ट हो गया, तमाम चीजें हो गई, आपको देर हो रही है, क्योंकि आप कनेक्टेड ही नहीं है ना वहां तक, आप उस दिक्कत की जड़ में नहीं है। हम तब तक हॉस्पिटल्स को गाली नहीं देते उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पे जब तक हमारा अपना पेशेंट वहां एडमिट नहीं होता। जब तक आप खुद किसी बड़े अस्पताल के अंदर अपने घर वालों का इलाज नहीं करा रहे होते, तब तक आपकी नींद नहीं जागती। हम लोग, इंडियन सोसाइटी इज सच अ हिपोक्रेट सोसाइटी कि व्हेन यू सिट इन द कार एंड यू ड्राइव अ कार, और रिक्शे वाले की वजह से आपको जाम लगता है तो आप उसको हॉर्न बजाते रहते हो कि इसकी वजह से मेरा तेल फूक रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और जब आप खुद रिक्शे में जा रहे होते हो, साइकिल रिक्शा में, और पीछे वाला हॉर्न बजाता है तो आपको गुस्सा आता है कि देख नहीं रहा गरीब आदमी रिक्शा चला रहा है।
तो ये जो हमारी सोसाइटी के मापदंड है ना, ये बड़े, क्योंकि क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मीडिया इज अ प्री मैच्योर मीडिया। टेलीविजन के खास तौर पे अगर मैं इसको कहूँ ना, टेलीविजन भी बड़ा प्री मैच्योर रहा हमारा। एकदम से आपके हाथ में माइक आ गया, एकदम से सर पे छतरी आ गई और आपने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। पत्रकारिता में, अखबारों की अगर मैं बात करूं, मैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो में 3 साल रहा। वहां क्या था, मैंने देखा कि, और मैंने चैनलों में भी देखा है, मुझे लगता है श्वेता एग्री करेंगी, कि हम लोग तो आए मास कम्युनिकेशन पढ़ाई करके, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, कोई आईआईएमसी से आया, कोई सिम्बोसिस से आया, कोई मारवा इंस्टीट्यूट से आया, कहीं से आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया। हमसे पहले के जो कुछ 10-15 साल पहले के पत्रकार रहे, असल में वो लोग कर रहे थे लॉ। अब लॉ में उनका कुछ दाल गली नहीं, तो एडवोकेसी से वो यहां आ गए पत्रकारिता में। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आईएएस बनना था, आईपीएस बनना था, वहां प्री में रह गए या बाद में रह गए, इंटरव्यू में रह गए, तो यहां आ गए। तो उनके साथ अच्छी चीज पता है क्या थी, वो पढ़े लिखे थे, कहीं पे रुक गए लेकिन ज्ञान तो था उनके पास। तो सामाजिक परिवेश को उन्होंने एक अलग नजर से देखा, और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि उस दौर के बने हुए संपादक आज भी 2021 में अच्छा काम कर पा रहे हैं। चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे वो दूसरे लोग हो, आज भी उनके YouTube चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर हैं, वो चैनल अच्छे से कमा पा रहे हैं, बिना नौकरी के भी कमा पा रहे हैं। क्यों कमा पा रहे हैं? क्योंकि आज भी वो है। हमारे यहाँ क्या है कि आपने मास कॉम कर लिया, आपने डिग्री ले ली, रेडियो, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया पढ़ लिया, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना सीख लिया, और आप उतर गए डिग्री लेके, साथ चले गए एचआर के पास कि साहब हमें नौकरी दे दो। अच्छा, आपको भी लगता है यार 10-12 हजार रुपए की शुरुआत हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब आपकी शुरुआत ही 10-12 हजार से होती है, तो उसमें नुकसान ये होता है कि फिर जब आप कंपेयर करते हैं अपने दोस्तों से, कि आपका एक दोस्त एमबीए करके निकला, उसका पैकेज तो लग गया 15 लाख रुपए का, और आप 15 लाख पहुंचने में 10 साल निकाल देंगे, तो आप डिमोटिवेट भी होते हैं इस चक्कर में। अगर मैं 1-2 चैनलों को छोड़ दूं, तो मैक्सिमम चैनल हिंदुस्तान में कोई बहुत अच्छी तनख्वाह नहीं देते पत्रकारों को। कुछ टाइम बाद आपको लगता है यार उसने 20 लाख की गाड़ी खरीद ली, आप अभी तक 4-5 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो। तो ये सारी चीजें भी आपको डिमोटिवेट करती हैं जिंदगी में। और जो उन्होंने कहा श्वेता ने कि टो द लाइन, फिर वो करनी पड़ती है आपको चैनल की, क्योंकि आप में ये साहस पैदा हो नहीं पाता, और आप भी धीरे धीरे उस सिस्टम के पार्ट बन जाते हैं जिस सिस्टम में आपको ढाला गया है। तो उस सांचे को तोड़ने की जरूरत है, ताकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे जब आप जैसे बच्चे एज अ गेस्ट पैनलिस्ट बैठे होंगे आज के कुछ 8-10-15 साल बाद, तो वो ये कह पाएंगे कि बॉस हमने कुछ किया है जिंदगी में। तो सीखिए जरूर, आप सब जगह जाके काम सीखिए, लेकिन मैं निश्चित तौर पे एग्री करता हूँ श्वेता से कि अगर कुछ आप चाहते हैं सोसाइटी में चेंज करना और अपने जीवन में परिवर्तन लाना, वो टाइम चला गया जब लोगों ने बरखा दत्त को पहचाना, दीपक चौरसिया को पहचाना, और मुझे नाम लेने में कोई परहेज नहीं है, सब जानते हैं एक दूसरे को, तो वो समय चला गया। आज आप एंकर भी बन जाएंगे तो आपको कोई नहीं पहचानता, जाके देखिए चांदनी चौक में कोई नहीं पूछेगा, ऐसे ही घूमते रहेंगे, कोई नहीं जानता किसी को आज की तारीख में, और कोई किसी को बॉदर भी नहीं करता। वो जमाने चले गए जब आपकी बायलाइन छपती थी तो लोग कहते थे वाह जी वाह, इनकी बायलाइन छपी है, हम जरा जरूर पढ़ेंगे। वो टाइम चला गया। अब या तो आप काम कर रहे हैं अपनी इंडिविजुअल सक्सेस के लिए, या फिर अगर आप में थोड़ा बहुत अगर कुछ मादा है तो आप अपना नाम कमा पा रहे हैं, वो बड़े गिने चुने लोग हैं। तो थोड़ा अलग करने की सोचिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, तो ही मुझे लगता है कि कुछ बेहतर हो पाएगा। Yes, sir. Rightly said. If Shweta ma'am and Utkarsh sir want to add anything. I think Shivang covered almost all of it, everything that I wanted to say and everything that I perhaps could not think of. मुझे याद है प्रिंट की जब हम बात करते हैं तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मेरे एक प्रोफेसर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी डिग्री जर्नलिज्म या पत्रकारिता में ही ली, जिसके लिए अब मैं रिग्रेट करती हूँ। शायद कोई और डिग्री लेती, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, तो किसी एक सब्जेक्ट में तो मास्टर होती ही। पर हमें अक्सर बताया जाता है ये एक जॉब पाने वाली मेंटालिटी है कि अगर आपको किसी फील्ड में जॉब चाहिए तो आप उसी में डिग्री ले तो बेहतर है। तो इसलिए जर्नलिज्म में बैचलर्स किया, जर्नलिज्म में ही पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, तो एक सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल नहीं हो पाई।
तो जब स्टूडेंट थी तो अक्सर सवाल पूछा जाता था, पेपर्स में भी आता था हमारे, मुझे याद है टर्म पेपर में भी सवाल आया था, इज प्रिंट मीडिया लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस? उस वक्त भी जवाब ना था, आज भी जवाब ना है। एक चीज़ आई थिंक जो शिवांग भी करते होंगे या मैं तो आज तक करती हूँ, जब टीवी में थी तब भी करती थी, कि द फर्स्ट थिंग वी डू is that we wake up and we read the newspaper. We are TV journalists, but we wake up and we read the newspaper, right? We don't wake up and we start watching TV. No, we wake up and we read the newspaper. Why? Because we know that you can only get the information in depth, and you can get information that has not been covered elsewhere in newspapers. अगर आपको किसी भी विषय को अच्छे से समझना हो, किसी भी विषय पर अच्छे से जानकारी पानी हो, तो वो पेपर से ही हो पाएगा। तो न्यूज़पेपर में ही आप अगर खोलेंगे तभी समझ पाएंगे। टीवी से भूल जाइए। एक समय था जब शायद लोग एनडीटीवी देखा करते थे या जी देखा करते थे किसी विषय को समझने के लिए। मुझे याद है आज भी आई थिंक कश्मीर पे मुझे समझना था कि कश्मीर में मिलिटेंसी कब से शुरू हुई, तो मैं एक बार लेफ्ट राइट और सेंटर देख रही थी, तो मज़ा आया सुन के, एक्सपर्ट्स को सुन के, उनकी राय जान के। और उस वक्त काफ़ी छोटी थी, उस वक्त बरखा दत्त होस्ट करती थी। तो वी द पीपल, आई एम सॉरी, वी द पीपल, नॉट लेफ्ट राइट इन सेंटर। तो उस वक्त वी द पीपल में काफ़ी अच्छे टॉपिक्स को उठाया जाता था, उन पे अच्छे अच्छे एक घंटे लंबे डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स होते थे। आज की डेट में वो नहीं होता है। That doesn't happen in today's time and date. So what we do essentially is we open the newspaper, and that's how we get our first daily dose of news. And we only get information through a newspaper, regardless of how well connected we are as journalists and how much our fellow journalists know. We know that you can only get depth and you can only get variety in a newspaper. You can't get that on TV. As Shivang already pointed out, there are issues that TV will never cover, right? चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो फार्मर्स की बात हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात हो, ये इश्यूज अगर आपको इनके बारे में जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप न्यूज़पेपर ही खोलें तो बेहतर है। हमें तो ये इनफैक्ट रोज़ पूछा जाता था कॉलेज में कि क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ के आइए। तो हमें तो कई बार निकाला भी गया है। हमारे टीचर्स ने हमें बोला है कि बाहर जाइए, पढ़ के आइए, अगली बार से पढ़ के आइएगा। प्रिंट की ही क्लास होती थी, क्योंकि जर्नलिज्म में एक पूरा सेमेस्टर हमारा प्रिंट जर्नलिज्म पर ही था। तो उस पूरे प्रिंट जर्नलिज्म सेमेस्टर में हमें पढ़ना ही पढ़ना होता था। तो इट वाज अ गुड हैबिट, वी वर टोल्ड टू डू इट and we stick to it and we still do it. I think journalists don't do it today, which is very unfortunate, because they then go out, they report on an issue, they garble whatever comes in their mouth. 4 लाइंस दी जाती हैं, फ्लैशेस आते हैं स्क्रीन पे, आप उन्हीं 4 को पढ़ते हो एज एन एंकर। फिर उसके बाद आपको रिपोर्टर जो कि आपको वही 4 लाइनें बता चुका है, वही 4 लाइनें वो दोबारा पढ़ता है और न्यूज़ खत्म हो गई। आपको ना उसका स्टार्टिंग पता ना आपको उसका एंड पता, फॉलो अप तो होता ही नहीं है। फॉलो अप तो भूल ही जाइए कि किसी न्यूज़ पे हमें मिलेगा कि अच्छा आज ये हुआ तो कल क्या हुआ। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, वो तो आपको पता चलेगा ही कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है पंजाब का, लेकिन कोई भी बड़े इशू पे कभी भी फॉलो अप नहीं होगा, किसी भी सिग्निफिकेंट इशू पे फॉलो अप नहीं होगा। सो दैट कैन ओनली हैपन via print journalism. Is print losing its significance? No, not in this decade, not in decades to come. It will never lose its significance. People who understand will still pay for print, will still get a newspaper, will still read it. Youngsters may not be reading it, and that's unfortunate. All of you should read it. I think every right-minded individual, जो भी जानकार व्यक्ति है दुनिया में, इस देश में, वो अखबार पढ़ेगा ही पढ़ेगा और पढ़ना ही चाहिए। आपकी जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं से मिलेगी, कोई और सोर्स है ही नहीं आपको डेली डोज ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए। टीवी इज नॉट अ गुड मीडियम फॉर स्टूडेंट्स। आई स्ट्रिक्टली टेल देम, डू नॉट वॉच टीवी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इश्यूज, read newspapers. So no, I don't think print is losing its significance. I don't think it will ever die, regardless of how good digital does, how quickly you know send me news updates on my phone, be it an app, be it a newspaper publication which has just recently launched. Whatever you try and do to tap into digital space, print will never lose its significance. देखिए, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जो श्वेता ने कहा कि प्रिंट मीडिया में क्या होता है ना, एक पेपर होता है बीच में, उसे हम कहते हैं हिंदी में संपादकीय और अंग्रेजी में कहते हैं एडिटोरियल। यस। तो वहां पे क्या होता है कि व्यूज, जो विचार होते हैं, उनको स्पेस दी जाती है, ठीक है। तो वहां हमें किसी इंटेलेक्चुअल इंसान की ज्ञान मिलता है कि राइट विंग क्या कर रहा है, लेफ्ट विंग क्या कर रहा है, सेंटर क्या कर रहा है, कश्मीर के ऊपर पॉलिसी में क्या अच्छा है क्या बुरा है ना, नागालैंड में क्या अच्छा है क्या बुरा है, श्रीलंका से हमारे रिश्ते कैसे हैं, फिशरमैन के क्या इश्यूज हैं,
यूएस से हमारा क्या है, बिदेन आ गया तो हमारा साथ पॉलिसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट द ओनली प्रॉब्लम विद टीवी टुडे इज कि सुबह 7 बजे 6 बजे के बुलेटिन खुलने से लेके रात के 11 बजे के बुलेटिन खत्म होने तक न्यूज कहीं पे भी नहीं है, व्यूज ज्यादा है। सो दे आर शेपिंग योर ओपिनियन। जैसे कि शुरुआत में उत्कर्ष ने भी कहा और श्वेता ने भी कहा कि मीडिया इज अ ओपिनियन मेकर। तो आज की तारीख में जो आप जैसे नेव माइंड्स हैं, जो फ्रेश माइंड्स हैं, उनकी ओपिनियन ही ये बन रही है कि जो एंकर ने बोल दिया वो आपकी ओपिनियन हो गई, जो टीवी पे पैकेज चल गया 2.5 मिनट का वो आपकी ओपिनियन हो गई। आप कभी कश्मीर नहीं गए, किसी कश्मीरी से नहीं मिले, आपने ओपिनियन बना ली कि सारे कश्मीरी आतंकवादी हैं। आप कभी नॉर्थ ईस्ट नहीं गए, कभी त्रिपुरा नहीं गए, कभी आपने नागालैंड नहीं देखा और आपने किसी चीज के बारे में ओपिनियन बना ली। तो ये टीवी की प्रॉब्लम है। इसीलिए श्वेता भी आपको समझा रही हैं कि आप सब लोग अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। जो पढ़ते हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ते उनके लिए बहुत खतरनाक है। दूसरी बात, देखिए टीवी के पत्रकार होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि टीवी की एक मजबूरी है कि उसको सब कुछ जल्दी चलाना है। मैंने टीवी और प्रिंट में दोनों में काम किया है। फॉर्चुनेटली मैंने एएनआई में भी काम किया है, तो मैं जानता हूं कि टीवी से भी ज्यादा तेज एएनआई काम करता है। तो मैंने तीनों को कंपैरिजन करके देखा है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कवर करता था। डिफेंस के पत्रकार, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया के रजत पंडित हो, मनु पबी हो या दूसरे लोग हो, ये लोग पूरा पूरा दिन डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे रहते हैं। सो दे हैव इनफ टाइम टू मेक कॉन्टैक्ट्स, टू मीट पीपल, to meet not only the PROs but also the people who are sitting at the senior positions. लेकिन टीवी का पत्रकार क्या करता है? टीवी का पत्रकार जाएगा, अपनी खबर से बात करेगा, पीआरओ से बाइट लेगा, कोई स्टोरी मिली तो ठीक है, नहीं तो बाहर आ गया। और मैक्सिमम टीवी पत्रकारों की कोशिश होती है कि सर हमें कश्मीर भेज दीजिए, हम वहां जाके एक स्टोरी कर लेंगे। सर हमारी कोई या फिर जैसे अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए तो सर रैपिड एक्शन फोर्स किस तरीके से काम करती है, उसका एक स्टोरी हमें आधे घंटे का स्पेशल करा दीजिए, डेमो उसका। तो आप साहब अलीगढ़ चले गए और वहां जाके डेमो करके शूट वूट करके आ गए, आपने आधे घंटे का प्रोग्राम चला दिया। तो मैक्सिमम जो टीवी के पत्रकार हैं वो सनसनी वाला काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअली डिफेंस पॉलिसी समझनी है इंडिया की, तो आप पढ़िए अच्छे अच्छे पत्रकारों के जिनके मैंने आपको नाम बताए, इनसे आप बात करिए। ये आपको दिल्ली में बैठ के बता देंगे कि कश्मीर में कौन सा कोना कहां पर है, लद्दाख में कौन सा कोना कहां पर है, कौन सी लेक में कहां दिक्कत है, चाइना कहां तक एंटर किया है। मेरी गारंटी है टीवी का पत्रकार आपको नहीं बता पाएगा, एक आध को अगर हम छोड़ दें तो, क्योंकि वो कभी गया ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है। अगर वो कहेगा अपने चैनल में कि मुझे आप लेह लद्दाख भेज दीजिए, मुझे चाइना और इंडिया कवर करना है, तो चैनल के पास बजट ही नहीं होगा। वो बोलेगा हम श्रीनगर वाले को भेज देते हैं। श्रीनगर वाले को नॉलेज उतनी होगी नहीं, वो डिफेंस मिनिस्ट्री कवर करता नहीं है। ऐसे मल्टीपल मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप जैसे एक आम आदमी तक एक्चुअल चीज पहुंच ही नहीं पाती। तो आपके पास जो हाफ इंफॉर्मेशन होती है वही आपके जीवन का सच बन जाता है, जो कि आपको पत्रकार बनने के बाद नुकसान देता है। 100 sir, and like being an audience, not as a journalist, definitely I'm not sir आपको पूरी information है, but what I think is कि when we start reading newspaper ना, we get perspectives of a lot of people, like it has articles, it has everything which has been written by a lot of people, but when we listen to a particular program, or so there is a specific anchor who is going to represent his views. Now most of the times, as you said, the news is also being written somewhere and the person is just reading it. But on the other time, when we read newspaper, something we'll be reading from Hindu, sometimes we'll be using Indian Express, so there we'll get to learn different perspectives about a single topic. For example, if we talk about women empowerment or any issue for sake, so when we will be reading ourselves different newspapers, or when we will be reading different views of different people on the same topic, then we will be able to frame our opinion in a better way than just by listening to news and then framing something. Like, I think this is also something which is important and why we should continue to read newspapers. Thank you, sir. Yes, truly agree. Okay, so for now, we can have our last question. If anyone wants to ask anything. Good afternoon to all. My question is to all panelists. What are some changes you expect in Indian media?
Thank you, sir. I in So can I? particular not I in particular not expecting any change very soon. For sure. And if there is any, it will be another illusion. I'm an optimist, so I do have expectations. I don't know whether it's going to come into uh, fruition anytime soon or not. Whether it comes into fruition is a different question altogether. But I do have certain expectation, and I think one of the most important expectation that I have personally is that जब आप रिपोर्ट करने जाते हैं तो आपकी जो विचार हैं, आपकी जो ओपिनियन है, उन्हें घर छोड़ के आइए। मैं अक्सर अपने पत्रकारों को जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरी टीम में काम कर चुके हैं या मेरे यंग कॉलीग्स हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि आप सरकार से प्यार या नफरत नहीं करते हैं, आप जनता के सरोकार की बातें करते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आप पत्रकार बने थे कि आप बातें वो कीजिए जिस बात से आपको लगता है कि जनता का सरोकार होगा। आप अगर if you are obeying the government, if you are in love with the government, and if you hate the government, you are not a good journalist. You are only a good journalist if you are speaking for the people of this country. Don't have to hate anyone, don't have to love anyone, you just have to report, right? You just have to report. We cannot expect news to suddenly be devoid of opinion. हम ये expect नहीं कर सकते. As I mentioned earlier, it's not possible because every media company today, it's a corporate media company. Let's not forget. हर किसी का एक माई बाप है. चाहे नेटवर्क 18 की बात करें तो रिलायंस है, दूसरे नेटवर्क्स के दूसरे हैं. हर किसी का एक कॉर्पोरेट बैगेज है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है यू हैव टू टो अ लाइन. सो व्हाट कैन यू डू एट बेस्ट, व्हाट कैन यू डू एट बेस्ट being on the field? I think at best you can at least be honest to yourself, and the way you be honest to yourself is report as factually as possible. Don't love the government, don't hate the government, know that you're here as a reporter and know that I'm here to talk about the welfare of the people. अक्सर हम सोचते हैं कि सरकार का क्रिटिसिज्म यानी देश का क्रिटिसिज्म, हम इन दोनों को इक्विवेलेंट समझते हैं कि अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप देश को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और अगर आप देश को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं, यू आर एन एंटी नेशनल. I have a problem with that. The problem is, and I think all the journalists, I'm sure Shivang also has a problem with it, and so will Utkarsh, because every person, every right-minded journalist today knows that journalism, regardless of whichever side you are on, is for the welfare of the people. If you do not question, nothing will change. अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, और अगर कुछ नहीं बदलेगा तो हम जहां हैं वहीं रहेंगे. There will be a status quo. Nothing is going to improve, nothing is going to get better. Are we content with where we are? Do we not want growth? Do we not want progress? Because if we do, we need the right policies in place, we need the right structure, we need the right sort of push in the right direction, then we must continue to question, and we must continue to ask the right question of whoever is in power. It shouldn't matter to you whether it's the BJP or it's the Congress, it's the Trinamool, it's SP, BSP, whichever party is in power, your job remains same. So whenever you go out on the field, whenever you step into the studio, remember, you are not a person who leans towards right or left. You are a journalist who is not supposed to lean towards any ideology. So I think that is my expectation of the journalist today. Know that it's your job to question. Don't say कि हाँ भैया सरकार से सवाल पूछने के लिए ऑलरेडी एक बड़ा तबका खड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम सरकार के फेवर में करेंगे. अगर आप सरकार के फेवर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप सरकार के फेवर में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो आप पत्रकार नहीं है. और उसी तरीके से मुझे लगता है जो केवल सरकार विरोधी है वो भी पत्रकार नहीं है. अक्सर मैं देखती हूँ कि क्योंकि एक तबका ये है जो सोचता है कि वी शुड हेट द गवर्नमेंट. there have been people around me who hate everything that's got to do with BJP, who hate everything that's got to do with Modi. No, if you are hating the government, you might as well go and sit in the opposition. You're not a good journalist. Your role as a journalist is to report. If it's a good thing, report the good thing. If it's a bad thing, report the bad thing. Don't love, don't hate, and keep your ideology at home. I think that is my expectation. Yes, ma'am, truly agreed. Okay, so for now, I would like to ask all the panelists to please conclude the session.
Shivang sir, you are on mute. उत्कर्ष, मैं कह रहा हूँ उत्कर्ष पहले बोल लें, अब वो काफी देर से चुप है। Yes, sir. सर अब ये जो लास्ट प्राची और तनु ने जो क्वेश्चन रेज किया था, उस पर मेरा एक पॉइंट ये रहेगा, व्हाट चेंजेस। तो परिवर्तन तो संसार का नियम है, बहुत सुना है लेकिन उसमें भी अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो बहुत बड़ा चेंज अभी तो नहीं आने के लिए हम देख सकते हैं, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स अपार्ट कि एक समय था जब यूपीए को कहा जाता था कि यूपीए को हटाना ही मुश्किल है। यूपीए 70 ईयर्स तक राज कर लिया, ये कर लिया, एक मतलब प्रभुत्व कायम कर लिया यूपीए गवर्नमेंट ने, लेकिन उसे कोई हटा नहीं सकता। तो वही चीज यहाँ पर भी हम अगर मीडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में क्यों नहीं शिवांग माथुर सर या क्यों नहीं श्वेता कोठारी मैम आने वाले समय में वो लीडिंग फेस हो सकते हैं, जो आज मीडिया से या मीडिया के उन पॉइंट्स को रेज कर रहे हैं, और क्या पता उनको सही करने में उनका सबसे अहम रोल भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि ये चेंज आने वाला नहीं है या आ नहीं सकता, तो ये चेंज लाने के लिए कई ऐसे एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं और जो अभी काम कर रहे हैं, जो इस एरा के जर्नलिस्ट हैं। कई जर्नलिस्ट उसी चीज के लिए काम कर रहे हैं, भले ही वो अभी किसी भी आइडियोलॉजी का मेरा मतलब यह है कि किसी भी चैनल या किसी भी पोर्टल के साथ अभी भले ही काम कर रहे हो, लेकिन उनका जो अंतिम ध्येय है, फाइनल एजेंडा यह है कि आने वाले समय में जो जर्नलिज्म का मूल आधार था उसको परिवर्तित कर उसका असल स्वरूप सबके सामने लाने का, जो स्थापित करने का अलग असल जर्नलिज्म का था, वो ध्येय अभी भी कई पत्रकारों का है और आने वाले समय में वो निसंदेह कायम होगा। और मेन चीज ये है कि कोई भी चैनल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका भले ही माई बाप या कहाँ से उसको मिल रही हो, उसको वो दरकिनार कर उसके खिलाफ लिखने और बोलने से कतराता है। लेकिन श्वेता मैम ने कहा कि जो पॉइंट रखने के लिए अगर वो रख सकता है पत्रकार, तो वो न्यूट्रलिटी के ऊपर काम कर सकता है। ये नहीं कि वो सरकार की बुराई कर रहा है या सरकार का पैरोकार बन रहा है, पत्रकार की जगह पक्षकार बन रहा है। इसके बदले वो न्यूट्रलिटी पे काम करे और ना ही उसको एक तरह से वो ये चीज फेस कर सके कि वो पत्रकार गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट काम बोल रहा है, बल्कि जो फैक्चुअल चीज है उसको आगे रखते हुए वो अपना काम करे। तो मेन चीज ये है कि वो अपना तो बचाव करेगा ही, क्योंकि पत्रकारों को अपना बचाव अभी इस समय बहुत करना पड़ रहा है और कोई भी इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि अगर जरा सा इधर से उधर निकल जाए पत्रकार तो उसके ऊपर ऐसे आक्षेप लगा दिए जाते हैं, तो वो आजकल घर बैठ जाते हैं। लेकिन वो बात आने वाले समय में कैसे दूर होगी वो अब हम आगे देखेंगे। लेकिन ये चीज ये है कि परिवर्तन संसार का नियम है और ये परिवर्तन शीघ्र अतिशीघ्र आए, ऐसी हम सबको अपेक्षा है। बाकी एक पॉइंट अभी लास्ट में जो शिवांग सर ने ऐड किया कि कई पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने सॉरी श्वेता मैम ने वो पॉइंट ऐड किया कि वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का वो विरोध करने के लिए अपना एजेंडा चला रहे हैं। तो ऐसे में कई ऐसे भी पत्रकार हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को डिमोरलाइज करने के लिए या गवर्नमेंट की नीतियों को डिमोरलाइज करने के लिए ट्वीट्स करते हैं कि आधा कटआउट निकाल दिया या क्रॉप इमेज पोस्ट कर दी, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो चाहे किसी और माध्यम से हो, कि आज इस अखबार ने ये पोस्ट करा और पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा था। दैनिक भास्कर उसमें एक है, और ऐसे ही कोई पत्रकार, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने उस चीज को क्रॉप करके पोस्ट कर दिया। तो उनका फाइनल एजेंडा ये रहता है कि गवर्नमेंट को किसी भी तरह डिफेम किया जाए, डिमोरलाइज किया जाए। लेकिन वही चीज श्वेता मैम ने जो बात कही, उस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। ना हमें प्रो गवर्नमेंट होना है, ना ही हमें एंटी गवर्नमेंट होना है। साफ सीधी बात, जो टॉपिक्स, जो विषय आज समाज में कहीं हाशिए पर चले गए हैं, उनको अब आगे लाने का समय आ गया है।
और भले ही वो मिनिस्ट्री मीडिया में से के माध्यम से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ऐसे कई पोर्टल्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, आप कहें, जिन्होंने अपने दम पर ये बुलंदी हासिल की कि वो अपना पोर्टल ऐसे स्टेज पर आके खड़ा कर चुके हैं कि बड़े बड़े मीडिया टाइकून्स उनसे अब अपना क्या कहते हैं काम कराना चाह रहे हैं। लेकिन यही चीज है कि ये सारे टॉपिक्स आज वही मीडियम्स अपने तरफ से रख सकते हैं, ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया, ये हम मानते हैं। और आने वाले समय में ये सब चीजें धीरे धीरे करके चेंज में आएंगी, और ये चेंज भी शीघ्र आए ऐसा हम जानते हैं कि होना तो चाहिए, लेकिन अभी समय लगेगा। और समय समय की बात है, सारी चीजें अब धीमे धीमे करके लाइन पर आनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे कई मीडियम्स ऐसे हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के उन टॉपिक्स को उजागर किया है जिनको क्या कहते हैं उन लोगों ने दबाने की कोशिश की। Yes, sir. Sir, if Shivang sir and Shweta ma'am wants to add, they can. Shweta ji, please go ahead. How would I like to conclude? So the way I'd like to conclude this is, how far has the media come in the last 75 years since independence? There have been ups, there have been downs. I wouldn't call any period in the history of this country a glorious period or a golden era for journalism. But I think at no other time in the history of this country was the press so divided. And in no other time in the history of this country did press ever actively participate in mass genocides, hysteria, and creating hatred and divisiveness. Press, जिस जगह पर हम हैं, जिस मोमेंट में हम हैं, the Indian media will have to answer a lot of tough questions, right? Will have to answer a lot of tough questions. Warmongering तक सीमित था, चलता. गवर्नमेंट की लाइन टोक करने तक सीमित था, तब भी चलता. But the moment it steps up as a mobilizer of communal tensions is when we need to reflect on how we are moving ahead. And I think that is something that worries me. That's the only thing that worries me. Division अब इतने steep हो गए हैं, polarization अब इतनी steep हो गई है that media today has become an active mobilizer of hatred. And that is, I think, something we need to stop now and stop today. At any point of time, when you see a media house actively suppressing voices of minorities, actively insinuating that these people are terrorists, that these people are Jamaatis, that these people are responsible for everything that is wrong in the country, that when a law on anti-conversion is always talked of as love jihad law, love jihad is a conspiracy theory. जब मीडिया इस नैरेटिव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग जाती है और इस नैरेटिव को बड़ा चढ़ाकर दिखाती है, इट शुड रेज रेड फ्लैग्स, एंड इट हैज रेज्ड रेड फ्लैग्स. कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ये जानता है कि, और जानना चाहिए, अगर नहीं जानता है तो जानना चाहिए कि at every point of time you are insinuating, as a media company, you are building the narrative of us versus them. You are not contributing towards the growth of this country. You are harming the social fabric of this country. If you think this country will only progress if a certain section of this country progress, अगर 80% जनता जो कि एक धर्म की है वो प्रोग्रेस करेगी तो पूरी कंट्री प्रोग्रेस करेगी. अगर आपका ऐसा मानना है तो आप गलत हैं. The only reason I am proud as an Indian today is because I believe in the diversity of this country. I believe in the plurality of this country. I am what you call a liberal person. Right? Liberal जो एक बहुत abusive word बन चुका है आज की डेट में. I actively refer to myself as a liberal feminist. Two words that are very abusive, two words that are often used against me, but I take that as a badge of honor. If you are not liberal, if you're not progressive, if you do not believe in the plurality, in the diversity of this country, if you do not respect who we are as a country and how far we have come, then you are actively contributing to the divisiveness. Then you are a part of the narrative that is built on majoritarian nationalism, and majoritarian nationalism may end up making you a Germany, may end up making you a US,
but then there'll be nothing to be proud of. There'll be nothing left to call as India, right? That is India. That is what India, the concept of India for me is that. So I think we need to reflect on where we are growing and moving towards as media in general. And all of you must actively participate in that discussion, in that conversation. Ask what you want. Do you want media to divide, or do you want media to do its job? At every point in time, the media starts dividing. At every point in time, you see divisiveness, you see hatred, you see active propagation of misinformation, disinformation, fake news. At each of this instance, when there is a minority involved, when there are Christians, Muslims, Dalits, tribals involved, raise your voice. Raise your voice, because they need to be protected. Because, and I'm not saying Aksar, every moment, every time you are said, okay, talk about minority, the other person says, oh, you're a minority appeaser. No, I'm not a minority appeaser. I will only talk about the minority until the time I see they are on the same plank. When they are on the same plank, then you don't need to appease them. You do not need to appease anyone for that matter, but you need to ensure every citizen of this country, regardless of their caste, age, gender, creed, are on the same plank, given the same opportunities to grow and to develop as a country, as your fellow countrymen. So I think that is important, and it's not my duty to to hate anyone and to ensure that I toe the line of the government. And therefore, it's my duty to ensure that every policy that is rolled out, every narrative that is rolled out, is helping this country to move forward, not move backward, right? That is my role as a journalist. And I think that is where I need to question what's happening. And that is where each of you should also jump in. That's about it from me. Thank you, ma'am. Shivang. देखिए, किसी ने लिखा है कि माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो जो उत्कर्ष ने कहा और श्वेता ने कहा, दोनों ने बहुत अच्छी बातें करी। और जिस इंडिया की बात श्वेता कर रही हैं, उसी इंडिया पे मैं भी विश्वास करता हूँ और करता आया हूँ। और वही भारत और वही सच्चे भारत की तस्वीर होनी चाहिए, और वही तस्वीर हमने बचपन से देखी है। आज जो तस्वीर अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन एज अ नेशन जो तस्वीर हम देख रहे हैं, वो असल में उस भारत की तस्वीर नहीं है जो हम लोगों ने अपने स्कूल में देखी थी या सीखी थी या उसके बाद। नेशनलिज्म का पाठ जो हमें आज कुछ तथाकथित लोग पढ़ा रहे हैं, वो ये भूल जा रहे हैं। आज हमसे कहा जा रहा है कि आप पिक्चर देखने जाइए तो जन गण मन गाइए। मतलब कि मैं पहले चिकनी चमेली का डांस देखने जाऊं तो उससे पहले मैं राष्ट्रगान गाऊं। तो ये वो लोग हैं जो से कहते हैं ना कुंठित लोग। कुंठित समझते हैं आप? तो ये कुंठित सोच के लोग हैं। नेशनलिज्म हम में बचपन से भरा हुआ है। हम बचपन से स्कूल की लाइन में खड़े होके जनगण मन गा रहे हैं, सारे जहां से अच्छा गा रहे हैं। तो एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच पे कि कोई भी किसी से भी आप नेशनलिज्म का पाठ मत सीखिए, क्योंकि ये लोग तब नहीं थे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, आईपीएल का वर्ल्ड कप जीती थी और सड़कों पे, सारी सड़कों पे, दिल्ली और नोएडा की सड़कों पे हम सब डांस कर रहे थे। तब ये लोग हमको नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं आए थे। और उसके पहले भी तमाम जगहों पे लोग अपना राष्ट्रीय जो प्रेम है वो दिखा चुके हैं। तो एक चीज़ तो ये। खैर, मैं क्योंकि आज हमारा डिस्कशन पत्रकारिता को लेके है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात उत्कर्ष ने भी कही और श्वेता ने भी कही कि निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट, नथिंग इज़ परमानेंट, ओनली चेंज इज़ कांस्टेंट, एंड चेंज विल कम, चेंज इज़ कमिंग। आई एम ऑल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, एंड चेंज आया है। अगर आप देखें, अगर आप सोचें, तो आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि एक पत्रकार होने के बावजूद भी मेरे घर पे 3 साल से, लगभग 3 साल से, हम लोगों ने अपना डिश टीवी रिचार्ज नहीं कराया। हम लोग केवल OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हैं और वहाँ हमको जो देखना होता है हम अपना कंटेंट चूज़ कर लेते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है। देश के बड़े जाने माने पत्रकार रवीश कुमार तो खुद ही कहते हैं कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप टीवी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप टीवी देखिए, आपकी इच्छा है, लेकिन ये समझना होगा कि आपको कोई चीज़ कहाँ ले जा रही है, आपको कोई चीज़ कहाँ धकेल रही है, और क्या उस चीज़ के लिए आप पैसे दे रहे हैं, क्या उस चीज़ के लिए अपना समय दे रहे हैं।
तो ओपिनियन मत बनाइए इतनी जल्दी हर चीज़ों के बारे में, जानिए पढ़िए। एज अ यंगस्टर्स मेरी एडवाइस आपको यही है कि खूब पढ़िए, खूब चीज़ें जानिए, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जानिए, उसके बाद अपनी सोच बनाइए। ये मत सोचिए कि ये लेफ्ट विंग बुरे हैं या जेएनयू बुरा है। जिस जेएनयू को इतना बदनाम किया गया है, ये वो जेएनयू है जहाँ से भारत सरकार के 2 से 3 मंत्री निकले हैं। और ये पांच जी मंत्री बिल्कुल अभी फिलहाल कैबिनेट में हमारा बिल्कुल बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर, पूर्व जी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी तो जी। तो इसीलिए, और ये जितने लोग और अपने दिमाग में ना, मतलब थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव देखिए, अपने जीवन को भी थोड़ा सा एक 70 mm की स्क्रीन पे देखिए। नैरो पर्सपेक्टिव से क्या है कि क्योंकि आप लोग छात्र हैं, छात्र जीवन में हैं, आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, वो सीमित होगी। जिसे कहते हैं ना, गैर परों पे उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। तो अपने पर बनाइए आप, किसी की सोच आपके अंदर इंसर्ट मत कीजिए आप। और खूब पढ़िए, खूब लिखिए। सारी बातें श्वेता कह चुकी हैं, पत्रकारिता को लेके उत्कर्ष कह चुके हैं, बातों में हम सब कह ही चुके हैं अपनी। तो और बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें ये समय दिया, हमारे व्यूज़ सुने बैठ के संडे के दिन, और हमें बुलाया, हमें सम्मान दिया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी सारी शुभकामनाएं आपको प्रेषित हैं। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए। कोविड टाइम चल रहा है, हर घर में वायरल हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है। ध्यान रखिए अपना, और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir and ma'am. It was a really indeed great session. On the behalf of EBSB SRCSW, I would like to present you the letter of gratitude. Ek Bharat Shresh Bharat Club of Shahid Rajguru College of Applied Sciences for Women extends sincere gratitude to Mr. Shivang Mathur, Ms. Shweta Kothari, and Mr. Utkarsh Upadhyay to be a part of this event to discuss journey of Indian media since independence on September 19, 2021, and enlightening us with the major highlights of Indian media and sharing valuable insights with us. Your contribution to the event was immensely valuable. We are grateful for the learning experience that you have provided. Thank you for taking out your time from your busy schedule and joining us. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank Thank you. Thank you. you guys, thank you so Thank Uh, you so much. much. I would like to ask everyone to please switch on your cameras for a group photograph. सब लोग एकदम फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गए। Except me. Utkarsh, what happened? Are you in bed? Almost. Okay, take care. Is it done? Tanya, is it done? Done. Thank you. Okay, thank you. Thank you so Okay. much. Thank you Thank you guys. so much. Thank you Thank Utkarsh, you. thank you Shweta. Thank you, Shivang. We are posting a Thank you, feedback sir. form. We are posting a feedback form in the chat box. All the attendees are requested to please fill out the feedback form. After filling the feedback form, you can leave the meeting. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye bye, take Thank care. you Thank so you, much. ma'am. Thank you, Bye sir. bye Thank you, guys. ma'am. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, Dee.